Hello, yeah, very good morning, everyone. We'll start in some time. Let others also join. Yes, till that time, please open up your systems. Yesterday, we have started a new topic called Material Master. We'll be looking at that as well and the other details. Please open up your systems till that time. Yes. Good morning, sir. Okay. Let us start now. Yeah. Okay. Before we go ahead, I just want to see everybody has done all the steps. Anyone, can you please revise from the beginning till the steps we have done? Anyone? Any one of you? यस सर मैं कंटिन्यू नहीं नहीं आप नहीं, कोई और करेगा. Anyone else? Nikhil ji, would you like to continue right from the beginning? I want anyone else also to take the topic. See, everyone should contribute into this. मुझे पता है शायद जी आप कर लोगे. I know that. But those who have not taken initiative till here. Chandra ji, would you like to do? Can you please share the screen? Show me right from the beginning. 5 मिनट में अपना एक रिवीजन भी हो जाएगा. That is very important. Anyone? Right from company till अपना ये यहाँ तक assignment तक. I want any one of you to show till assignment of purchase organization to plant. Who has done all the steps? Justin, आपने भी किया होगा. Okay. Who wants to share the screen? Aditya, would you like to share? आपने सारे steps किए हैं. Just show me as a quick revision. Go ahead. Go Yes, ahead. sir. Yesterday I showed you all these steps. अच्छा आपने दिखाया था. ठीक है ठीक है. No problem. Who wants to share the screen? Waiting for others to join. Okay, no problem. शिवम जी आपने भी किया है, आपने दिखाया भी था. अमोल सर, आपने किए सारे स्टेप्स राइट फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द एंड हाँ ऑफ सर सेकंड. किया है सर, लेकिन एक्चुअली इसमें क्या ना मेरा नेट एकदम मोबाइल से ना स्लो आई चल रहा है अंडरस्टैंड आई तकरीबन, अंडरस्टैंड आई अंडरस्टैंड. इसलिए ठीक है. मैं करके रखा है सर, कोई इशू नहीं है। डन डन डन. ओके ओके. यस सर, ओके। हु एल्स? एनीवन प्लीज शेयर द स्क्रीन एंड शो मी ऑल द स्टेप्स. इट्स अ क्विक रिवीजन और फिर हम आगे बढ़ेंगे. वी विल मूव फॉरवर्ड फ्रॉम देयर. Okay, Argavan, would you like to share the screen and show me right from the beginning till now all the steps, please? Please do it quickly. Share the screen and सारे steps दिखाइए मैम right from the beginning till now. एक अच्छे से रिवीजन हो जाएगा और we will go forward to the next topic because we need to learn split valuation configuration. There are several things which are involved. Yes. Can you hear me? Am I audible to you? Everyone? Everyone, please start your cameras. Let me check whether everyone is present. Who wants to share? Yes, please. क्विक क्विक दिखाइए ताकि हम लोग आगे बढ़ेंगे. गुड मॉर्निंग ओके. सर। वेरी गुड मॉर्निंग. नमस्ते सर. ओके. Because I want to move forward. Yes, Argaon ma'am, please share the screen from the beginning. I want you to show me all the steps.
क्रिएशन ऑफ कंपनी, कंपनी कोड, और क्विक 5 या 10 मिनट में हो भी जाएगा अपना, उससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम आगे बढ़ रहे हैं लेकिन पिछला जो है हम भूल गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। कैन यू हियर मी मैम, आर यू देयर? ओके निखिल जी, वुड यू लाइक टू शेयर? Yes, sir. हाँ जी, आप दिखाइए। एनीवन यू कैन टेक एन इनिशिएटिव, मुझे ऐसे नाम लेने की जरूरत है ही नहीं। आई So, जस्ट वांट एनीवन टू शो। 10 मिनट लगेंगे ज्यादा से ज्यादा, तो दिखा दीजिए कि ये किया है, फिर आगे बढ़ेंगे, सिंपल। yes, sir. और ये ऐसा कोई चाहिए नहीं कि टेस्ट लेना है वगैरह, इट्स नॉट लाइक दैट। Oh, आई जस्ट वांटेड टू मेक श्योर दैट एवरीवन अंडरस्टूड एवरीथिंग, सो दैट जब हम आगे बढ़ेंगे तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि मुझे समझ भी नहीं आया। हाँ, सिंपल, वेरी नाइस। हाँ, राइट द पासवर्ड। define company, sir, firstly. करेक्ट। OX50. हम्म, ओके, गुड, Then very नाइस। zero. हाँ, ओके, देन व्हाट इज द नेक्स्ट टी कोड? सर विदाउट लुकिंग एट Yeah. इट, नोट में बिना देखे कर लीजिए, देखो आपका अच्छे से प्रैक्टिस होगा। OX15 OX02। Yes, sir. ओके, असाइनमेंट ऑफ कंपनी कोड टू कंपनी, नेक्स्ट वन, स्लैश एन OX02। Assign company यस, to company. हाँ, Then, कंपनी कोड, देन uh, असाइनमेंट ऑफ कंपनी कोड टू कंपनी OX16। फटाफट, ताकि रिवीजन भी अच्छे से होगा और हम आगे भी बढ़ पाएंगे। हाँ, 16, वेरी नाइस, असाइनमेंट ऑफ कंपनी कोड टू कंपनी। then define business area. हम्म, नहीं, हाँ, ये OX. असाइनमेंट हो गया। आपका आपने आपने आपका दिखाइए ना, आपने किया है वो। Yes, sir. हम्म, मैक्स 10 मिनट लगेंगे, देखो उससे ज्यादा लगेगा ही नहीं। हाँ, ये आपका ओके, पुणे दिल्ली मुंबई नासिक, ठीक है, चलो नेक्स्ट वन। Yes, sir. Define business area. बिजनेस एरिया, स्लैश एन OX03। वेरी नाइस। ओके, geography wise, product wise, whatever you have created, please make sure that you write down, at least prepare an excel sheet, good, सही है। Yes, sir. फंक्शनल Pune. एरिया, क्या है टी कोड? So, functional area. Okay, BDC. ओके बीडी, सही है। बिना देखे करोगे तो, क्योंकि अभी तक तो वो आ जाना चाहिए, कह रहे हाँ मुझे बिना देखे भी आ रहा है अभी। हाँ, गो हेड नाउ। यस, आपका कोड डालिए और डैश, बाकी फंक्शनल एरिया तो दिख ही जाएंगे सामने, ये रहा। Yes, sir. एक्सटेंडेड वेयर हाउस मैनेजमेंट वगैरह, ठीक है, चलो नेक्स्ट, व्हाट विल बी Then द नेक्स्ट वन? credit control area, sir. हाँ, स्लैश एन OB45। हाँ, गुड गुड गुड, नाइस वन। Credit control area. हम्म NV01, NV02. हम्म, Then assign credit control असाइनमेंट area. ऑफ क्रेडिट कंट्रोल एरिया टू कंपनी को, ओबी Company code. 38 OB38, गुड गुड गुड। असाइनमेंट पार्ट, नेक्स्ट वन, Then define सेगमेंट। segment. सेगमेंट मेनू पाथ से ही जाइए सर, इस पे ये बहुत बड़ा है, आपको याद नहीं रहेगा, इट्स ओके। गो थ्रू मेनू पाथ ओनली, एस्केप करके बाहर आइए, स्लैश एन, एंड गो थ्रू मेनू पाथ। You need to SPRO. be confident so that it will be easy for you to flow between the system, और ये सिर्फ की बात है ही नहीं, इट इज अबाउट एवरीथिंग। Counting. वेरी नाइस सर। वो देखो Define segment. सेगमेंट का ये क्या है सर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेगमेंट? Segment is a sir, हाँ, यू कैन कॉल component इट एज अ, types, यस यस two wheeler यस, वगैरह. वेरी नाइस, इट्स अ डीपर बिजनेस एरिया, बिकॉज यू शुड Yes, बी इन अ sir. पोजीशन टू एक्सप्लेन एज वेल। कर, आप कर लोगे, आई नो दैट, बट Yes, sir. explanation is also important from your interview point of view, okay? So you can have Yes, sir. international, domestic, urban, rural segments. Apart from that, you can have, if your company is automobile, you can take any example, okay, under that which all segments are there, you can show, हाँ, now FM area, go ahead sir। Then financially. बढ़िया, FM financial management area, it is being defined for cash flow, fund flow statements, and the most important part, why it is being done, in order to define the currencies across the world, wherever your company has got branches over there, go there in V01। नहीं नहीं नहीं, Yeah, ये नहीं, आप गलत जगह yeah, पे, नहीं ये नहीं, आप ना मेनू पाथ से जाइए, देखो आपको अलग दिखेगा। yes, sir. गो थ्रू मेनू पाथ, SPRO, Yes, SPP रेफरेंस, IMG, हाँ। enterprise structure.
डेफिनेशन। financial अगर accounting, टाइम मिलता है मैं आपको कंट्रोलिंग का भी पढ़ा दूंगा, बहुत आपके लिए जरूरी है यार। आइए। international, हाँ, एफएम एरिया, ये रहा एफएम एरिया, गुड। सब कुछ देखो है ना, थोड़ा सा फर्क है ना, सारी चीजें जान लीजिए आपको, है ना। मुझे पता होना जरूरी है कि ये हो क्या रहा है। एंटर, बढ़िया, नेक्स्ट वन। then हाँ, liquid plant, प्लांट, OX1 is 0, एटलीस्ट 2 to 3 plants you should create। 1 0, very good, nice one, nice one। So you can give the name of the plant, 4 digit code। low Hmm. electrical automobiles, then storage location, नहीं Hmm. assign का plant to company को Hmm. slash OX, then storage location, Yes, OX092 सही है सर। अब यहाँ पे डालिए OX092, you can get into that। हाँ, आपका प्लांट का नाम डाल दीजिए, and whatever areas you have created, show it to me। Yes, गुड। उसके अंदर कितने आपने किए हैं? 3 नहीं केजेस, नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, वो उसी एक से एक आराम से, आराम से। एटलीस्ट यू शुड क्रिएट 2 addresses अंडर द प्लांट, आराम से, आराम से। रॉ स्निपेट, हाँ, उसको सिलेक्ट कीजिए ना, नहीं नहीं, पीछे से नहीं नहीं, ऐसे, हाँ, आराम से, आराम से, आराम से। डबल क्लिक ऑन दैट। आपने किया होगा, नहीं ये किया ही नहीं सर, आपने क्यों नहीं किया? रॉ में किया था सर। अच्छा, हर किसी में 2 2 एटलीस्ट कर दीजिए, बस हो गया। यस सर, नहीं, कर बाद में कर लीजिएगा, चलो यस एक या दो, हाँ ठीक है, चलो यू गॉट द कंसेप्ट। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन। यस सर, देन इसके बाद क्या आता है? मेंटेन परचेसिंग और ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट आर द टाइप्स मेनली? मेनली सर कॉर्पोरेट टू हम्म। कंपनी, हम्म। कंपनी हम्म। ग्रुप, देन हम्म। प्लांट। सही है। ओके, दिखाइए उसमें आपने किया क्या। एवरीवन प्लीज मेक श्योर यू डू इट ऑन योर यस ओन, सो दैट आपको समझ में आएगा। गो अहेड। गुड। सोनी में सर, आपने किया है क्या? यस सर, सेव किया। पोजीशन में जाइए। अरे सर, असाइनमेंट ऑफ प्लांट टू कंपनी कोड, हाँ आपका प्लांट का कोड असाइनमेंट, नोट्स पे देख के कर लीजिए। असाइनमेंट ऑफ प्लांट टू कंपनी कोड क्या है, टी कोड उसका सही डाला होगा आपने, चलो हाँ। सॉरी, एनवीडिया ऑटोमोबाइल्स, हाँ, ये क्या आ तो जाए, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ लिख के रखिए, नहीं तो ना आपको आप भूल जाओगे। हाँ, नेक्स्ट वन। एनएक्स ओएक्स 08, हम्म। परचेसिंग, हाँ, मेंटेन परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन, 3 टाइप्स, आपने बिल्कुल सही कहा। उसके बाद परचेसिंग ग्रुप्स होता है, दिखाइए आपके 3 जो आपने किए हैं। एनवीसीजी, अरे वाह, बहुत बढ़िया सर। एनवीपीएस अभी का है नहीं है। गुड और गुड। एनवीसीएस, ओके ओके, नेक्स्ट वन। देन क्रिएट परचेसिंग ग्रुप। ओके। हाँ, परचेसिंग ग्रुप क्या होता है सर? परचेसिंग ग्रुप सर, एग्जैक्टली उसका ये क्या स्पेसिफिकेशन एनवीआर क्या है, व्हाट इट इज बीइंग मेड फॉर? सर, परचेसिंग ग्रुप सर क्रिएट। पढ़ाई नहीं सर, रिवाइज करना पड़ेगा सर। नहीं किया आपने? नहीं सर, रिवाइज नहीं किया सर। अच्छा, रिवाइज नहीं किया। नहीं नहीं, आप देख के कीजिए ना, कोई इशू नहीं है, लेकिन ये किए ना पूरे परचेसिंग ग्रुप, यस सर, यस सर, प्लांट वाइज परचेसिंग, ग्रुप वाइज परचेसिंग एंड इज दिस वन। ओ ओएमई को, हाँ 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 हाँ, दिखाइए। अच्छा, ये हाँ हाँ, रिवाइज कीजिए, बहुत जरूरी है। यस सर, बस। रॉ मटेरियल हाँ, सेमी वही फर्निश्ड वही कोई कुछ प्रोडक्ट, भी हो सकता है, यस, आपका रॉ मटेरियल, इलेक्ट्रिकल, सेमी फिनिश्ड, वट एवर यू वांट यू कैन। हाँ, नेक्स्ट वन दिखाइए। देन खुद से असाइन करके परचेसिंग देखिए। ऑर्गेनाइजेशन टू हाँ, कंपनी को। वेरी नाइस, वेरी नाइस, यस।
अभी असाइनमेंट वाले सारे पार्ट्स होंगे, देखो जो क्रिएट करेंगे उसको असाइन भी करना है, सिंपल। अपना लॉजिक समझ यस लीजिए, सर। कौन सी चीज कहाँ पे कैसे जुड़ जाती है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे आगे जाके ये एमएम फाइनेंस के साथ कहाँ जुड़ेगा, एमएम आगे जाके एसडी पीपी ईडब्ल्यूएम कहाँ जुड़ेगा, इसलिए मैं आपको बुक्स भी भेज रहा हूँ ना, तो आपका नॉलेज बढ़ना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। असाइनमेंट हम्म। ऑफ परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन टू रेफरेंस परचेसिंग हाँ, रेफरेंस ऑर्गेनाइजेशन। परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन। मुझे हिंदी में ये समझा ठीक है, मैं इंग्लिश में एक्सप्लेन कर पाऊंगा, बट आई नीड टू अंडरस्टैंड, अदरवाइज इट विल बी डिफिकल्ट फॉर मी टू एक्सप्लेन एज वेल। हाँ जी, गो अहेड। NCSP and CSO. Then assign purchase organization to plant हम्म। slash and OX. हम्म। NV202 बस हम्म। यही तक, यही तक बता सकते हैं। Then, That's all. no problem. Yes. Yeah. Who wants to take the next topic? Anyone wants to take the next topic? हाँ जी, Sir, आप ले next लीजिए topic शाहिद सर। is material master. आप ले लीजिए शाहिद सर, आप ले लीजिए, कोई इशू नहीं है। मेरा बस इतना ही कहना है कि हर कोई कंट्रीब्यूट करेगा। आई नो आप तो ले लोगे, मुझे पता है आपका तो प्रैक्टिस भी हो चुका है, यू विल डू इट वेरी वेल, बट आई वांट ईच वन ऑफ यू टू गेट इन्वॉल्व। कई बार क्या होता है कि Awesome. हाँ कि मतलब कैंडिडेट सामने है कि नहीं, मेरी ना ये मैं बताता हूँ, इवनिंग बैच में ये होता है। कई कई बार स्टूडेंट होते हैं कि नहीं, कई बार तो सो जाते हो, समझ में ही नहीं आता मुझे कि है कि नहीं सामने। सर आप ले लीजिए टॉपिक, चलो स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक, मटेरियल मास्टर। गो हेड सर, यू हैव द Yes, नोट्स, sir. यू हैव द Yes, नोट्स। sir, I have. I have. एवरीवन प्लीज स्टार्ट डूइंग इट, आप खुद से कीजिए। कोई इश्यूज आता है आपको, आप सीखोगे उससे, प्लीज डू इट। हाँ, कर लीजिए चलो। एवरीबॉडी हैज रिसीव्ड नोट्स, मैं इसके अलावा बाकी के भी भेज दूंगा आपको। ओके, डोंट वरी। यस, ओके, पहले पढ़ लीजिए क्या क्या है। स्प्लिट वैल्यूएशन कॉन्फ़िगरेशन इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड, एंड देन वन बाय वन विल बी डूइंग इट। Yes. So first one is like first of all we are seeing the material master. उसमें In ये material master, first one is split valuation configuration. कॉन्फ़िगरेशन। हाँ। So, split valuation helps in valuating the stocks of a material in हम्म। the same valuation area, हम्म। company or plant differently. हम्म। So, this means basically we are evaluating the stocks of a material, means whatever stocks are already available. So, we are valuating it, maybe its price or maybe its quality. So, that company or plant. So, some of the examples where split valuation is required are as follows. Stock that is procured externally from a हम्म। vendor has a different valuation price than the stock of an in-house production. करेक्ट करेक्ट करेक्ट, ओके, क्लियर कट डिफरेंस Stock, समझ में yeah, आता है। यस। yeah. Stock obtained from one vendor is हम्म। valuated at a different price than हम्म। the stock obtained from another अदर vendor. वेंडर, ये दूसरा हो गया, लिख लीजिए इसको। थर्ड वन इज। Yeah. Same material having different batch may have different valuation prices. हाँ देखो, एक ही मटेरियल होगा लेकिन बैचेस अलग अलग है, सो इट माइट बी डिफरेंट प्राइसेस एज वेल। गो अहेड सर, नेक्स्ट वन। इसको Yes. करते देखो, ये मेनू पाथ से जाइए, एंड टी कोड आप लिख लीजिए, OMW 0 है, वो 0 है, प्लीज राइट डाउन, राइट डाउन मेनू पाथ, राइट डाउन टी कोड। OMW0. Okay. हाँ, अभी मेनू पाथ इससे जाइए, ओपन द सिस्टम, और ये पढ़ लीजिए और कीजिए फटाफट, अभी हो जाएगा टॉपिक, ये कोई बड़ा बहुत बड़ी बड़ी बात नहीं है। हाँ, मिनिमाइज कर दीजिए इसको, ओपन द सिस्टम। एवरीवन प्लीज ओपन द सिस्टम, हम लोग साथ साथ करेंगे। गो हेड नाउ। नीचे नीचे दिखेगा, देखो आपको मटेरियल मैनेजमेंट, इसके सेल्स के नीचे आएगा, देखो सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन के नीचे MM वाला पार्ट। हाँ, ये ट्रांसपोर्टेशन का भी मेरे पास नोट्स है, मैं आपको भेज दूंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
आप देखो Yes, देखो sir. टीआरएम का एक्सपर्टीज चाहिए होता है उनको। आई सेंड यू द नोट्स, डोंट वरी। हाँ जी, परचेसिंग आपने किया था, नहीं ये नहीं, नीचे। हाँ यस, परचेसिंग, उसके अंदर आपको देखना है सर वैल्यूएशन एंड, नहीं परचेसिंग नहीं, मटेरियल मैनेजमेंट, वैल्यूएशन एंड अकाउंट असाइनमेंट, स्प्लिट वैल्यूएशन। Materials management account. हाँ सर एक वैल्यूएशन, बार देख लेता हूँ. हाँ देख लीजिए ना, वो देखो वैल्यूएशन एंड अकाउंट असाइनमेंट पे, हाँ देख लीजिए, दैट इज इम्पोर्टेंट। हाँ आराम से कीजिए मिनिमम, यस। हाँ Material लिख लीजिए valuation and इसको। account. हाँ Yes, sir. हाँ, वैल्यूएशन एंड अकाउंट असाइनमेंट, देन स्प्लिट वैल्यूएशन, ऐसे एक 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 करके जाएंगे, जल्दबाजी नहीं है। वैल्यूएशन एंड अकाउंट असाइनमेंट, स्प्लिट वैल्यूएशन। हाँ पहले उसको पढ़ लीजिए, वैल्यूएशन एंड अकाउंट असाइनमेंट क्या है, फिर स्प्लिट वैल्यूएशन पढ़ना है, और फिर वो एक्टिवेट करना है हमें। अंडरस्टैंड द स्टेप। हाँ सी। In this section, you make the system settings required for the following areas: हम्म material valuation हम्म and link between and financial मैंने क्या accounting. बोला था, देखिए एफआई और इसके बीच में ये लिंक होता ही है। सो रिक्वायरमेंट्स आर Yeah. मस्ट हैव प्रोसेस्ड द डिटेल्स फॉर द मटेरियल टाइप्स। अभी उस टाइप्स पे क्लिक कीजिए सर, मटेरियल टाइप्स पे देखिए क्या है वो। हाँ देखो एट्रीब्यूट्स वगैरह ये हमने कर लिए हैं। हाँ क्लोज कीजिए उसको, चलो नेक्स्ट वन, नेक्स्ट बढ़ेंगे, आगे जाएंगे। ओके तो You must, yeah. रीड रीड गो अहेड। You must have processed the defaults for the material types before हम्म you can make your configurations for valuation and account determination. डिटर्मिनेशन, हाँ देखो Before you process हम्म valuation relevant transactions in the SAP system, हम्म read the main section valuation and account determination. तो पढ़ के ही करना है, इनका भी यही कहना है कि आप पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, फिर कीजिए, जाइए आगे। Yes, sir. हाँ स्प्लिट वैल्यूएशन, ये क्या मतलब है देखिए। यस। Split valuation enables you to evaluate substocks of a हम्म material in different ways. For हम्म example, according to external procurement or in-house production or by ठीक है, batches. जो हमने तीन देखे, तो ये आपको याद रखता है कि ये तीन, ये आपको पूछा जा सकता है इंटरव्यू में। हाँ नाउ अंडर द मेन्यू Under ऑप्शन। the menu option, split valuation, you can determine whether and how you want to use split valuation at your company. करेक्ट, स्किप कीजिए यहाँ से। सर ये सब स्टॉक्स क्या है? सब स्टॉक्स सब मतलब अभी देखो कि एक आपका मेन स्टॉक है, उसके अंदर वाले सब स्टॉक, जैसे कि आपकी कंपनी गाड़ियां बनाती है, आपका मेन पार्ट हो गया इंजन, लेकिन उसके उसके अंदर के भी छोटे छोटे पार्ट्स हो सकते हैं ना, है ना, जैसे या राइट कूल करने के लिए वगैरह। अभी मैं प्रॉपर टेक्निकली भी बता सकता हूँ। और अभी देखिए फॉर एग्जांपल कि आप, आपकी कंपनी समझो कुछ ये पैरासिटामोल वगैरह बनाती है, तो उसके अंदर वो बनाने के लिए आपको किसी कॉम्बिनेशन का वगैरह ये करना पड़ेगा, है कि नहीं। तो वो हो गए सब यस स्टॉक, सबके एक बड़ा स्टॉक, उसके अंदर के छोटे 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 स्टॉक, दीज आर द सब स्टॉक्स। जैसे ग्रुप ऑफ कंपनी एंड उसके अंदर की छोटी छोटी कंपनियां, जैसे कि टाटा ग्रुप ऑफ कंपनी के अंदर टाटा मोटर्स वगैरह, तो ये सब कंपनीज हो गई, उनकी सिस्टर कंसर्न्स बोल सकते हैं हम लोग। तो उस प्रकार दीज आर द सब स्टॉक, छोटे छोटे स्टॉक्स। गो अहेड, यस। यस सर गॉट इट सो उसको वैल्यूएट करता है ये हाँ स्प्लिट जी हाँ जी हाँ वैल्यूएशन जी। क्योंकि जरूरी है ना, देखो कोई भी चीज की प्राइस आप डिसाइड कैसे करोगे। समझो मैंने ये यस ड्रग ये किया, अभी देखो कोविड के टाइम पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑलमोस्ट सभी कंट्रीज को फ्री में बेचा, तो फ्री बेचा नहीं, एक्चुअली फ्री में दिया वो ड्रग्स, ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमैनिटी। उस वक्त उनको पैसे चाहिए ही नहीं थे कि सब लोगों की जान बचे, ये दैट वाज द क्या बोलते हैं मेन मोटो। और उससे क्या हुआ देखिए कि बहुत सारी कंट्रीज के साथ अपने जो ये है रिलेशनशिप अच्छे हो गए, एंड नाउ वी आर प्रोग्रेसिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट चैप्टर। तो ये एक आगे चीज हो सकती, तो ये हो सकता है आगे जाके। गो अहेड नाउ। एक्टिवेट स्प्लिट वैल्यूएशन वैल्यूएशन, रीड इट एंड देन एक्टिवेट। एक्टिवेट कॉन्फ़िगर, हाँ पढ़ लीजिए इसको। in this step you configure whether split valuation is allowed at your company. हम्म If you generally allow split valuation, this हम्म does not mean that you must evaluate each material on this basis. हम्म You decide whether to do so or not for a particular material when हम्म, creating the material master record. हाँ करेक्ट करेक्ट, नोट दैट। A note of effort is required to change this setting once it has been made. हम्म Actions for changing हाँ split valuation. हाँ कर पढ़ लीजिए। देखो एक To उन्होंने क्या change, बताया है कि ऑलरेडी अगर वहां पे है, अभी देखो टैक्सेशन के बारे में भी यही कहा जाता है। अभी मैंने कल ही बोला, देखो आज 19 तारीख है, 1 तारीख को अपना टैक्सेशन में देखो गवर्नमेंट बहुत ज्यादा चेंज नहीं करता, आगे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, आधा 1% यहाँ वहाँ।
अगर बहुत वही उन्होंने दिया कि अगर एकदम नीचे से ही आपको शुरुआत करनी है तो बहुत ज्यादा लॉट ऑफ एफर्ट्स आर रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू चेंज द वैल्यूएशन, तो ये नहीं होता है। थोड़ा सा यहाँ वहाँ पढ़ लीजिए बस। To change split material valuation, Hmm. once it has been set, you must first post out all stocks, for example, to a cost center or with movement type 562. Hmm. Then change the control parameters. Hmm. If necessary, change the automatic account determination. Hmm. Finally, post the stocks back in again. हाँ देखा, तो ये सारी चीजें जनरली क्या होता है आपको सिस्टम के अंदर वो मिल जाएगा। ओके, तो ये Yeah. मैं आपको इसीलिए मैं कॉस्ट सेंटर वगैरह जो है ना वो आपको जानना जरूरी है। मैं आपको कंट्रोलिंग के नोट्स भेज दूंगा, हाँ भले ही आपका पार्ट नहीं है, अकाउंट्स का पार्ट है, लेकिन मुझे नॉलेज तो होना चाहिए कि ये होता क्या है। एस्केप की, Yes. एस्केप की, क्लोज नहीं, एस्केप Escape. ऊपर वाला, Okay. ऊपर वाला, तो उसी के ऊपर एक्टिव। अरे नहीं, अच्छा. बाहर क्यों आ गया? Okay. Okay. अच्छा वो बाहर आ गया एक बाहर मिनट. क्यों? मैं वही तो बोल रहा हूँ आपको, बैक करना था, एस्केप नहीं करना था। हाँ, एसपीआरओ के अंदर ही तो हो आप, एसएपी रेफरेंस आईएमजी में जाइए अभी। हाँ, नाउ गो टू मटेरियल मैनेजमेंट, नीचे आइए एकदम। हाँ, यस, उसमें कौन सा? Valuation. हाँ, एंड अकाउंट, देखो ये याद रहेगा, याद रहेगा, ऐसा कोई इशू नहीं है। हाँ, स्प्लिट वैल्यूएशन, हाँ यस, हाँ, और ये एक्टिवेशन वाला वो पढ़ लीजिए, अभी हम पढ़ रहे थे पूरा, पहले जान तो लीजिए फिर करेंगे आगे। हाँ, Yes. Okay. इन द So we स्टैंडर्ड were here. एसएपी सिस्टम, हाँ ये पढ़ लिया ना आपने, एक्शंस एंड फॉर हाँ चेंजिंग। ये हाँ, नोट पढ़ लिया, एक्शंस भी पढ़ लिया. यस। In the standard SAP system, split valuation is active. हम्म। Activities set split valuation. हम्म। Notes on transport. हम्म। In this step, you maintain the table TQ, TCURM. ये This उसका नाम table, है, ठीक है, हाँ। yeah, हम्म। this table activates or deactivates key functions in the client. हम्म। It defines the valuation level, plant or company code. कंपनी देखो, प्लांट जो Act, हमने देखा, प्लांट एंड कंपनी कोड लेवल पे। सेकंड वन, yeah, activates the late material block पढ़ and लीजिए वो क्या है। activates split valuation. पढ़ लीजिए, लेट मटेरियल ब्लॉक मतलब क्या, देखो ये भी हमें जानना पड़ेगा। प्रैक्टिकल तो Yeah. आप कब करोगे? जब आपको पूरा समझ में आएगा। वैसे ही प्रैक्टिकल करोगे तो वो गलती होगा। पढ़ लीजिए, जान लीजिए, अगर चाहिए तो लिख भी लीजिए, बट अंडरस्टैंड। देखो अपना क्लास सैटरडे संडे है, लेकिन आपको हर रोज थोड़ा वक्त तो उस पर देना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर आपको नहीं समझ में आएगा। हाँ, वो है, रीड इट सर, रीड इट। Late lock for good movements. हम्म। हम्म। Late lock specifies that a material हम्म। is locked exclusively only if हम्म। data is actually to be saved. करेक्ट, हाँ। Is locked exclusively as late as possible to keep the lock time to a minimum. हम्म। The हम्म। advantage is that multiple users can enter good movements हम्म। at the same time हम्म। because only one shared lock is set for the हम्म। material हम्म। when the movement is entered. हम्म। The disadvantage is that the material master record is read multiple times, हम्म। and in the case of an outward stock movement, that हम्म। the log entries of other users on the ATP server हम्म। also have to be considered. हम्म। These additional accesses have ne- नेगेटिव इफेक्ट ऑन द have परफॉर्मेंस। negative effect on performance. यस, अभी बैक कीजिए, बैक कीजिए। ओके, इसमें सर थोड़ा एग्जांपल में बताइए ना सर, फिर याद में रहता एग्जाम्पल है आपका। अभी देखिए कि एक एक इस पे अभी देखो क्या है कि इफ द लॉक, लॉक मतलब आप एक्सक्लूसिवली मटेरियल के लिए लॉक बना सकते हो यहाँ पे। इज लॉक्ड एक्सक्लूसिवली एज लेट पॉसिबल टू कीप द लॉक टाइम टू अ मिनिमम। मतलब जैसे कि आपके अलग अलग लेवल से देखो जी, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट, एवरेज स्टॉक मेथड वगैरह। तो आपको इस तरह से मेंटेन करना है कि कोई मटेरियल वेस्ट ना हो, ये सारी चीजें। और एक जैसे मैंने बताया एबीसी कंट्रोल वगैरह होता है। देखो इसका एडवांटेज भी उन्होंने क्या दिया, एडवांटेज इज दैट मल्टीपल यूजर्स कैन एंटर गुड्स मूवमेंट एट द सेम टाइम। अभी देखो कि आपकी कंपनी का गोडाउन समझो फॉर एग्जांपल बैंगलोर में, और आपकी कंपनी का ऑफिस है बद्दी हिमाचल प्रदेश में। लेकिन आपको यहाँ से पता चलना चाहिए कि वहां पे कौन कौन सा मटेरियल का मूवमेंट क्या है, मतलब कि जैसे हम बोलते हैं ना पीओ रेज करना। तो ये तो बात की बात है, बट एटलीस्ट आई शुड नो दैट कि वहां पे एक्टिविटी हो क्या रही है, सो दैट आई कैन अलाइन एवरीथिंग इन अ प्रॉपर मैनर। तो वही सारी चीजें उन्होंने यहाँ पे दी हुई है। तो इन अ सर्वर इफ इट इज ऑलरेडी डन, यू शुड नो क्या, हाँ इतनी इतनी चीजें आ रही है। तो देखो ये इसीलिए ना सारी चीजें देखो, एफ आई, एम एम और एस डी, ये तीनों एक साथ में अगर इंटीग्रेट होंगे कि अरे हाँ इतना इतना ऑर्डर, जैसे हम ये करते हैं ना, सिंपल चीज है सर। आप जब ये शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो कि क्या देख के करते हो? कंपनी का पोर्टफोलियो। आपको पहले देखना पड़ेगा कि अरे हाँ इनके पास प्रोजेक्ट कौन कौन से हैं, आगे जाके उनको कहाँ से क्या फायदा होने वाला है, सो दैट आई कैन इन्वेस्ट इन दैट, सो दैट आई बी एबल टू गेट अ गुड डिविडेंड।
ऑन द प्रॉफिट। तो और देखो उसको, उसमें कई सारी कंपनीज ऐसे बोलती है कि ब्लू चिप कंपनीज है, तो वो कंपनीज क्या होती है कि वो आपको एक अच्छा पैसा बना के देंगी। इट मीन्स दैट देयर द इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो इज वेरी गुड। अभी एक प्रॉपर एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि एमआरएफ का शेयर सबसे महंगा है, 1 या 2 लाख रुपए का सिर्फ एक शेयर आता है, बट स्टिल पीपल बाय इट, क्योंकि उन्हें पता है कि इसमें ये प्रॉफिट होगा ही होगा आगे जाके। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। सो वी कैन सर्टेनली बी एबल टू अंडरस्टैंड। अभी एक बात देखिए, बहुत सिंपल सोचने वाली चीज है। अभी देखो एमआरएफ कंपनी क्रिकेट का कुछ भी नहीं बनाती है, मतलब ना बैट बॉल ऐसा कोई नहीं, लेकिन फिर भी देखो बैट के ऊपर एमआरएफ दिखता है, क्यों? क्योंकि उन्हें वो एडवर्टाइज करना है और लोगों के दिमाग में वो छप चुका है, MRF = क्वालिटी। तो वो देखो टाटा टाटा को एडवर्टाइज करने की जरूरत है भी नहीं, लेकिन फिर भी वो क्यों करते हैं? वो तो ब्रांड नेम है, मतलब भारत की पहचान ही उनसे है, फिर भी वो करते हैं, क्यों? बिकॉज दे नो दैट टाटा = ट्रस्ट। ट्रस्ट बोले तो टाटा ये है, और वो कभी ना कॉम्प्रोमाइज नहीं करते ट्रस्ट के ऊपर। तो ये बहुत सारी आगे जाके ना सोचने वाली चीजें होती है। यस सर, आप बैक कीजिए, सर आगे बढ़ेंगे। यस यहाँ पर इन्होंने क्या कहा है कि द एडवांटेज इज मल्टीपल यूजर्स कैन एंटर गुड मूवमेंट्स, मतलब हाँ, बहुत सारे लोग गुड मूवमेंट्स कर सकते हैं कर सकते हैं, एट द यस। सेम टाइम, हाँ लेकिन ओनली वन शेड लॉक इज सेट फॉर द मटेरियल। तो ये वन हाँ, शेड लॉक इज सेट का मतलब क्या है? मतलब एक लॉक की मतलब एक क्या बोलते हैं उसको कि लोग कर पाएंगे, लेकिन एक जैसे कि आपका मैनेजर वगैरह रहेगा ना, उसके पास उनका ये रहेगा कंट्रोल। दे कैन कंट्रोल इट। हाँ, एंटर कर पाएंगे लोग, बट कंट्रोल एक के पास रहेगा, ओके, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट वगैरह होता है ना वो। ओके, या गॉट इट। व्हेन द मूवमेंट इज एंटर्ड। अभी देखो मूवमेंट के भी 4-5 टाइप्स है विद इन द ये मतलब क्या बोलते हैं कि प्लांट के बीच में मूवमेंट हो रहा है, आप डायरेक्टली उसको बेच ही रहे हो, या फिर एक फैक्ट्री से दूसरे फैक्ट्री के अंदर जा रहा है, ये ऐसे मूवमेंट के टाइप्स भी है। मैं आपको नोट भी भेज दूंगा, है मेरे पास। बट आगे जाके वेट 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 आई शेयर पर्टिकुलर पार्ट। अच्छा, ये एक कर लीजिए स्टेप, मैं आपको ना एक ये भेज देता हूँ, बहुत बढ़िया नोट्स है, इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू टू अंडरस्टैंड। एक अच्छा पीपीटी बनाया था, यस सर। कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट एंड वेंडर मैनेजमेंट। इस अच्छा ये मिल गया आपको? सर कौन सा वाला? ये बहुत बढ़िया पीपीटी बनाया। अच्छा, ये थोड़ा मिनिमाइज कीजिए, पीपीटी पढ़ लीजिए सर, मैं भी अभी भेजा मैंने आपको, मटेरियल मैनेजमेंट का ही है। ऐसे बहुत सारा मटेरियल है मेरे पास, मैं आपको भेज दूंगा। जस्ट आप अंडरस्टैंड कीजिए कि ये है क्या। हाँ, इसको पढ़ लीजिए, देखो कितना बढ़िया तरीके से है। So one doubt. हाँ जी, बोलिए। So valuation of the stock. So हम्म, valuation is basically the cost or the value at which that material bought from the vendor, एग्जैक्टली। or is a valuation of the amount, the cost of manufacturing that material, ना 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 or ना 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 or ना the total मैन्युफैक्चरिंग। value divided by total inventory. हाँ, that will be a later purpose, sir. Valuation means that whatever material we have, that particular value we are talking about. Yes. Okay. हाँ, read this one, sir. It's very proper, और ये बहुत बढ़िया है, आप एक बार पढ़ लीजिए उसको, आपको बहुत अच्छा इसमें ये होगा। हम्म, यस सर। डेफिनेशन, नहीं, कहाँ से सिग्निफिकेंट। पढ़ना है ये? पढ़ लीजिए, अभी पढ़ लीजिए, क्या उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, मोस्टली ठीक टाइम से भी ज्यादा आपके इंफॉर्मेशन नॉलेज बढ़ेगा, पढ़ लीजिए उसको। है। Yeah. हम्म Means contents are this. After this, this is overview of SAP MM. हम्म And importance of SAP MM are nothing but business process integration and operational efficiency enhancement. हम्म Components of SAP MM includes master data, procurement process, inventory management, हम्म and invoice verification. MIRO बोलते हैं इसको, इन्वेस्ट वेरिफिकेशन, MIRO. पी का पार्ट है। हाँ, गो अहेड ना। Yeah. Understanding vendor management. अभी Fundamentals are definition and role. Vendor management involves overseeing and coordinating with suppliers to ensure the procurement of goods and services meets company standards. It plays a crucial role in maintaining supply chain efficiency. वेरी गुड। The objectives of vendor management include maintaining cost effectiveness, ensuring quality assurance, fostering strong relationships, and enhancing process efficiency to support business goals. Vendor selection process includes criteria for selection, which is selection criteria often encompasses factors such as cost, quality, reliability, and alignment with company values. Evaluating these criteria helps in choosing the most suitable vendors. Evaluation techniques can include methods like request for proposal, RFP, SWOT analysis, and strength weakness.
Yeah. कल बताएगा ना And आपको SWOT एनालिसिस? yeah, आपने कल बताया था. यस। And performance metrics to objectively assess and compare potential vendors. प्रैक्टिकल कर लोगे आप, लेकिन ये आपको ना पूरा दिमाग में आना चाहिए कि अरे हाँ इसमें क्या आता है, वेंडर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, इसी का आगे जाके ना सप्लाई चेन मैनेजमेंट के साथ भी रिलेशन आता है, और एमएम के साथ आपका देखो सप्लाई ये एसआरएम करके एक मॉड्यूल है, सप्लायर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। मैं देखता हूँ अगर मुझे नोट्स मिल गए तो मेरे ना दिमाग में ये पूरा आना चाहिए कि अरे ये एक चीजें क्या हो सकती है। प्रैक्टिकल आप कर लोगे, प्रैक्टिकल के पीछे मत भागो, ये हो जाएगा आपसे। Yes. अब प्रैक्टिकल करना डेटा एंट्री वाला काम है, वो तो कोई भी कर ले, हाँ, लेकिन मुझे 1 2 3 4 किसका किसके साथ में क्या ये आता है, लाइक व्हाट एग्जैक्टली विच मॉडल इज इंटीग्रेटेड विथ व्हेन वेयर एंड हाउ, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। अगर आपको ये पूरी नॉलेज समझ में आ गई ना, आपने गेम जीत लिया। ये बहुत जरूरी बात है। पढ़ लीजिए सर, वेंडर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। Vendor relationship management VRM. It includes communication strategies. Effective communication strategies involve regular updates, clear guidelines, and feedback loops to ensure mutual understanding and alignment between the company and vendors. Performance monitoring, which requires using KPIs, key performance indicators, सही है। and periodic reviews to track vendor performance, identify issues, and implement necessary improvements. Integration of SAP MM with vendor management. Benefits of integration: streamlined processes. Integration allows for automated workflows, reducing manual tasks and enhancing efficiency across procurement and vendor management operations. This leads to faster transaction times and better resource management. Second one, enhanced data accuracy. Combining SAP MM with vendor management ensures that data is consistent and accurate across systems, minimizing errors and discrepancies in order deliveries and invoicing. Functional integration aspects. हाँ देखो, ये क्या होता है, देखो ये क्या है? इंटीग्रेशन वाले एस्पेक्ट, सॉरी पढ़ लीजिए इसको। System configuration. It includes system configuration. The integration process involves setting up the SAP MM system and communication effectively with the vendor management module through various configuration steps and middleware settings. Master data synchronization, ensuring that master data such as vendor details, product information, and pricing is synchronized between SAP MM and the vendor management systems is crucial for consistent and reliable operations. Reporting and analysis. Integrated systems offer comprehensive reporting and analysis features, providing valuable insights into procurement activities, vendor performance, and overall supply chain efficiency. सर ये क्या है, मतलब ये फंक्शनल इंटीग्रेशन एस्पेक्ट्स? फंक्शनल का मतलब क्या होता है कि हम जो सारे जितने, दीज आर ऑल फंक्शनल मॉडल विच आर फंक्शनिंग। नाउ कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं, हाउ टू कॉन्फ़िगर द, देखो यहाँ पे दिया है द इंटीग्रेशन बिटवीन, सो एफआई टू एमएम का इंटीग्रेशन होता कैसे है, देखिए मेनली एमएम का फाइनेंस के साथ कहाँ पे संबंध आएगा, वेंडर मैनेजमेंट के लिए। इट मीन्स दैट अकाउंट्स पेबल क्या है कि हाँ, जो लोग हमने वेंडर से गुड्स परचेस किया, लेकिन उनको पे भी तो करना पड़ेगा, तो पे कैसे करेंगे, फाइनेंस डिपार्टमेंट थ्रू ही पे करेंगे। और P2P प्रोसेस का देखो सबसे पहला पार्ट आता है कि एमआरपी, मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग। उसके बाद आप करोगे रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन। आप रिक्वेस्ट, देखो सिंपल कॉमन सेंस से आप समझ लीजिए क्या क्या करते हैं। एमआरपी आता है, मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग। पहले आप देखोगे कि अरे हमारे यहाँ पे कौन कौन सा मटेरियल नहीं है, तो वो हम मंगाएंगे। अगर ऑलरेडी स्टॉक है तो वो नहीं मंगाएंगे। और अगर हाँ खत्म होने को आया है और ये दिख रहा है कि हम यार ये 15 दिन के बाद खत्म हो जाएगा, सो इट इज बेटर दैट वी शुड call the stock, and it is being done by MRP controller. सेकंड इंपॉर्टेंट पार्ट, RFQ, रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कोटेशन मंगाएंगे सारे, उसमें से छाट के हम देखेंगे अरे हाँ कोई इसको ऑर्डर देना चाहिए, चलो दैट पर्टिकुलर वेंडर विल बी सिलेक्टेड। देन ये हाँ थर्ड प्रोसेस में आता है कि वेंडर सिलेक्शन। फिर हम ये करते हैं परचेस रिक्विजिशन। परचेस रिक्विजिशन इज एन इंटरनल रिक्वायरमेंट एंड ऑल द डिपार्टमेंट विल सबमिट देयर प्रपोजल टू द परचेस डिपार्टमेंट। ऐसे नहीं होगा कि सभी डिपार्टमेंट खुद से ही जाके लेके आएंगे, वो परचेस डिपार्टमेंट के थ्रू ही परचेस करेंगे। देन आपका आता है परचेस ऑर्डर। परचेस ऑर्डर मतलब सिंपल, आप परचेस ऑर्डर दोगे और उनको बोलोगे कि हमारी ये कंडीशंस है एंड वी वांट मटेरियल एट दिस पर्टिकुलर प्राइस, क्वालिटी, क्वांटिटी, जो कुछ भी रहेगा, और इतने इतने दिनों में हमारे पास आ जाना चाहिए।
फिर उसमें अगर कुछ ये होता है कम ज्यादा नहीं है या फिर क्वालिटी के अनुसार नहीं, हम उसको रिटर्न भी कर सकते हैं। वो कहाँ पे आता है, MIGO। MIGO में ये सारी चीजें आपकी हो जाएंगी, मूवमेंट इन गुड्स आउट, मूवमेंट इन रिसीट आउट। रिसीट आउट जो होता है उसे बोलते हैं MIRO, उसे ही बोलते हैं इनवॉइस वेरिफिकेशन। ओके, यहाँ पे लिखा है देखिए, इनवॉइस वेरिफिकेशन इज MIRO प्रोसीजर। और सबसे लास्ट आपका आएगा परचेस वाउचर, विच इज बीइंग डन इन SAP थ्रू F-53। परचेस वाउचर मतलब हमने पूरा गुड्स परचेज किया, सब कुछ सही है, अभी हमें उनको पेमेंट करना है। और परचेस वाउचर बनता कहाँ से, फाइनेंस डिपार्टमेंट को, लेकिन उसका अप्रूवल MM से जाएगा कि अरे हाँ ये हो गया हमारा, सही बात है। सेम उसी प्रकार जैसे यहाँ पे हमने P2P प्रोसेस बनाया है, यही सारी प्रोसेस आप बनाओगे O2C के रूप में इनके कस्टमर के साथ। क्या होता है वो, कि राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑर्डर टू कैश बोलते हैं उसको, कि कस्टमर ने ऑर्डर दिया, तो ऑर्डर देने के बाद पहले हम क्या चेक करेंगे, अरे वो मटेरियल अपने पास स्टॉक में है कि नहीं है, वो तो पहले देखेंगे। उसे वो आता है MMBE। क्योंकि देखो मुझे ये सारे प्रोसेस में पढ़ाता भी हूँ, मैंने किया भी है, तो मुझे पता है। MMBE आप पहले देखोगे स्टॉक है कि नहीं है, उसके बाद अगर नहीं है तो आपको समझो बना के देना है या फिर कहीं से उन्हें अवेलेबल करा के देना है, तो वो सारी चीजें। और सबसे लास्ट में आता है कि कैश, मतलब ऑर्डर दिया और लास्ट में कैश आया। मैं आपको वो भी भेज देता हूँ, वो जो नोट्स है वो उसे वो O2C में आएगा। और सेम यही चीज आपका आता है R2R। R2R मतलब रिकॉर्ड टू रिपोर्ट, मतलब रिकॉर्ड करना है। जैसे ये अकाउंट्स का पार्ट है कि मुझे सारे स्टेटमेंट बनाने के लिए पहले, इन ऑर्डर टू प्रिपेयर ऑल द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, व्हाट आई नीड टू डू इज दैट आई नीड टू हैव अ ट्रायल बैलेंस विद मी। इन दैट आई विल बी प्रिपेयरिंग लाइक first important part, liabilities, asset, income, expenditure, and it is compulsory by law। मतलब मैं चाहूं या नहीं चाहूं मुझे बनाना ही पड़ेगा। I need to prepare all the financial statement because it's a government requirement। Whichever country my company is working, I need to abide by the laws of the land। Like before COVID-19, most of the Gulf countries doesn't have their taxation। वहां पे फ्री था सब कुछ, ड्यूटी फ्री वगैरह था, बट आफ्टर द कोविड ऑनसेट दे आल्सो हैव स्टार्टेड चार्जिंग टैक्सेस। तो हमें अगर टैक्स है तो हमें भरना ही पड़ेगा, क्यों है कैसा ये नहीं। हाँ, आपको उसमें से थोड़ा छूट मिल सकता है, एग्जेम्पशन एंड एवरीथिंग इज देयर, बट दैट डज नॉट मीन दैट यू आर नॉट लाइबल, बट यू नीड टू पे द टैक्स। मैं आपको इनकम टैक्स का भी ये भेज देता हूँ, मेरे पास है। आई वॉन्ट यू, देखिए हम लोग जॉब कर रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि क्या टैक्स है, मैं कितना भरता हूँ, ये सारी चीजें। अगर वही आपको नहीं पता होगा तो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू डू द फाइनेंशियल प्लानिंग गोइंग फॉरवर्ड। इसको डाउनलोड कर लीजिए। इसमें थोड़ा चेंज हो सकता है, कब, जब अपना बजट अभी ये होगा, डिक्लेयर होगा। सर हाँ जी। ऑर्डर टू कैश में आप जैसा बोल रहे हो कि जब हम्म हमें ऑर्डर मिलता है तो हम उन्हें हम्म। कैश देते हैं, राइट? मतलब उन्हें कोई ऐसा अरे उन्हें ऑनलाइन हम कैश नहीं ट्रांजैक्शन नहीं देंगे, करते। वो हमें कैश देंगे सर। कस्टमर से हमें अच्छा। ऑर्डर मिला तो कैश कस्टमर हाँ। देगा कि हम कैश देंगे उनको। अच्छा, हम इधर वेंडर है क्या? अच्छा। फिर वेंडर को हम पे करेंगे, कस्टमर हमें पे करेगा ना, एग्जैक्टली अपोजिट या प्रोसीजर है। ओके। कस्टमर को हम क्यों पे करेंगे, कस्टमर हमें पे करेगा ना। अब यहाँ ये देखिए, यस सर। इनकम टैक्स का मैंने भेजा, ये भी आपके लिए जरूरी है, मेरे दिमाग में आया, सो आई थॉट इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, गेट इट डाउनलोडेड। इनकम टैक्स सरचार्ज, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, ये क्या होता है, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। थोड़ा चेंज इसमें हो सकता है जब बजट डिक्लेयर होगा, बहुत नहीं लेकिन थोड़ा बहुत चेंज होगा ही होगा। और ये जनरल नॉलेज के लिए नहीं है, ये आपको जानने के लिए, क्योंकि लाइक आगे जैसे जैसे पैकेज वगैरह बढ़ता है इंसान का, तो हमें पता होना चाहिए ना कि क्या चीज है क्या नहीं है। तो प्लीज अंडरस्टैंड, रीड इट नाउ, गो अहेड। Challenges and solutions. हम्म It includes common integration issues, and हम्म uh, in that integration efforts can face obstacles such हम्म as data mismatches, हम्म system incompatibilities, and workflow disruptions हम्म that require careful planning and troubleshooting. Mitigation strategies. हम्म Addressing integration challenges involves strategies like thorough testing, हम्म robust data validation procedures, हम्म regular audits, and the हम्म। use of middleware solutions to bridge करेक्ट करेक्ट communication करेक्ट gaps. करेक्ट, देखा है कितना सिंपल तरीके से दिया है। अभी देखो, एवरी मंथ व्हेन देयर इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपरेशन, एट द सेम टाइम यू आल्सो नीड टू चेक द फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ द गुड्स एंड सिस्टम वेरिफिकेशन। मतलब जितना सिस्टम में दिख रहा है उतना ही यहाँ पे गोडाउन के अंदर भी है, वो होना चाहिए, कम या ज्यादा नहीं होना चाहिए। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि वेस्टेज हुआ है हमें पता ही नहीं है, हम बोल रहे हैं कि हाँ हाँ चलो बे। कई बार ये होता है, आपने देखा होगा कि एक्सपायर्ड गुड्स भी बेचे जाते हैं है करके। अगर आपकी कंपनी इज डीलिंग इन अ फूड आइटम या फिर मेडिसिन में वगैरह है, तो आपको ये पहले देखना पड़ेगा कि उसका एक्सपायरी तो नहीं हुआ, हम लोग कस्टमर को एक्सपायर्ड गुड्स तो नहीं बेच रहे। सो ये बहुत सारी चीजें उसके अंदर इन्वॉल्व है। ओके,
सो कॉमन इंटीग्रेशन इश्यूज देखो उन्होंने क्या दिया है, इट कैन फेस ऑब्स्टेकल्स सच एज डेटा ये Mismatches. मिसमैच। मैं वही तो बोला, फिजिकल स्टॉक अलग है, सिस्टम का स्टॉक अलग है, ये हाँ सिस्टम वाला स्टॉक अलग है, तो आपका मिसमैच हो जाएगा। इनकम्पैटिबिलिटीज एंड वर्क फ्लो डिसरप्शंस, मतलब मैं काम कर रहा हूँ, कई बार ये होता है ना कि लाइट चली गई तो मैं भूल गया, डाला ही नहीं मैंने। कई बार ये होता है कि इसके ऊपर फिर जो इनवॉइस वेरिफिकेशन करती है किसके लिए, कि बिल के ऊपर डेट डेट अलग होगा, हमें मिला उस डेट में अलग है, और मैंने एंट्री किया वो डेट अलग है। वो आपको कहाँ देखने को मिलेगा, ओबीबी 8 में, हम आगे जाके वो भी देख लेंगे। तो ये पूरा अगर मिसमैच हो गया तो देखो इसी इसी उसको बोलते हैं कि इनकम्पैटिबिलिटी और वर्क फ्लो डिसरप्शंस दैट रिक्वायर्स केयरफुल प्लानिंग, डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन इन फ्यूचर एंड ट्रबल शूटिंग एज वेल। अगर ये आप नहीं करोगे तो आपका, देखो बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स भी है, जैसे एबीसी होता है, देन आपका ये इकिगाई करके एक टेक्निक है, और मैकेनिकल इंजीनियर्स यूज करते हैं उसको, ये बोलते हैं क्या टेक्निक है वो, एनीवन मैकेनिकल इंजीनियर? Kanban. हाँ 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 हाँ, ऐसे बहुत सारे अलग अलग टेक्निक्स है कि आपका काम अच्छे से हो और कम से कम समय में ज्यादा प्रोडक्टिविटी बढ़े। ऐसे बहुत सारे टेक्निक्स यूज किए जाते हैं, हर कंपनी का अपना अलग होगा, लेकिन ये यूज जरूर करते हैं, बहुत सारे टेक्निक्स है। यस, गो अहेड यस। मिटिगेशन स्ट्रेटेजी पढ़िए सर, Yeah, mitigation strategies. आराम से, आराम Addressing. जल्दबाजी नहीं, पर समझ दीजिए पूरा। यस। Yes, sir. Addressing integration challenges हम्म involves strategies like thorough testing, robust data validation procedures, हम्म regular audits, हम्म and the use of middleware solutions to bridge हम्म communication gaps. गैप्स, हाँ। कम्युनिकेशन गैप कैसे होना चाहिए, कि उन्होंने ये कहा, और वो बोलते हैं ना कि हम दो लोग दो बाजू में खड़े हैं, एक को दिख रहा है कि ये 9 है, दूसरे को दिख रहा है 6 है, बात दोनों की सही है, लेकिन कहीं ना कहीं बीच में ये आना जरूरी है। सो हाँ, गो हेड, आगे जाइए आगे जाइए। सो Yes, कम्युनिकेशन sir. ना हो इसकी वजह से हमें कुछ टेक्निक्स यूज करना जरूरी है। गो हेड। Managing procurement in SAP MM. प्रोक्योरमेंट, P2P। हम्म Yeah, the procurement cycle. हम्म It includes requisition to payment. हम्म Detailed description about this title about 20 to 30 words. The process from initial request for goods and services or services हम्म through to the final payment made to the supplier, हम्म ensuring timely and efficient procurement in SAP MM. इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल डीमार्ट है। देखो वो क्या करते हैं लोग, देखो डीमार्ट का मोड, आई डोंट नो वेदर यू हैव गॉन थ्रू द केस स्टडी ऑफ अ डीमार्ट, बट वो सबसे प्रॉफिटेबल मॉड्यूल क्यों है पता है, कि वो क्या करते हैं, बल्क में परचेस करते हैं, फटाफट बेच देते हैं, और जो वेंडर जिनसे परचेस किया उसे 2 या 3 दिन में पेमेंट मिल जाता है। ऐसा नहीं कि एक एक महीना 3 3 महीना वो ये कर रहे हैं, ऐसे नहीं। और हर एक स्टोर आप उनका अगर देखोगे तो उनकी खुद की लैंड है, मतलब एडवर्टीजमेंट में उन्हें खर्चा करने की जरूरत नहीं है ज्यादा, कहीं रेंट नहीं देना है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि सारे के सारे, मतलब फॉर एग्जांपल आप कोई भी चीज, मैं अगर देखना चाहूँ वहां पे, समझो मुझे मोबाइल लेना है कुछ, तो मुझे सारे ब्रांड्स के मोबाइल वहां पे मिल जाएंगे, मतलब आपका कस्टमर कहीं और जगह जाएगा ही नहीं। दैट इज द रीजन, और आपको सस्ते दाम में मिलेगा। और ये होगा, देखो आप वहां पे अगर जाओगे ना तो डीमार्ट का भी, जैसे कि मुझे समझो 1 किलो काजू लेने हैं या फिर बादाम लेने हैं, एक एक सिंपल एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, तो वहां पे मुझे डीमार्ट का भी प्रोडक्ट दिखेगा और बाकी कंपनियों को भी दिखेंगे, एंड मैं उनके साथ अपना भी प्रोडक्ट बेचूं। ये ना बहुत डीप में आप स्टडी करो, इट इज अ वेरी वेरी आइडियल एग्जांपल ऑफ हाउ टू डू बिजनेस। बहुत सारे ऐसे हैं, बट एक मुझे अच्छा लगा वो ये डीमार्ट का, अगर केस स्टडी आप पढ़ोगे यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि उन्होंने उनका बिजनेस मॉडल प्रॉफिटेबल कैसे बनाया। आगे अभी देखिए, बाकी के जो थे उनके साथ में वो बंद हो गए, जैसे बिग बाजार हो गया, और भी बहुत सारे मार्ट थे। ओके, तो रिटेल इंडस्ट्री में दैट इज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल बिजनेस एग्जाम्पल, जो कि उन्होंने सक्सेसफुल बनाया है। हाँ, उसके लिए टाइम लगता है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट रेगुलर रिसर्च और बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व है, ये जरूर है। ऐसा नहीं कि कोई भी कर पाएगा, लेकिन आपको सीखना बहुत अच्छा है उससे, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर यू। यस, नेक्स्ट वन पढ़िए सर, परचेस ऑर्डर प्रोसेसिंग। Yeah, purchase order processing. हम्म Detailed description about this title about 20 to 30 words. हम्म Creating and managing purchase orders with SAP हाँ MM. हम्म Ensuring accurate documentation of procurement transactions हम्म and adherence to organizational procurement policies. पॉलिसीज, देखो अपना पॉलिसी भी तय होना जरूरी है, ऐसा नहीं कि कुछ भी परचेस कर लिया। और कई बार, लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम इट हैपेंस दैट मोस्ट ऑफ द कंपनीज आर परचेसिंग मटेरियल व्हिच इज रियली हाई इन प्राइस, so that should never happen, that you are unnecessarily blocking your capital। तो कभी भी, anytime, please do remember it's not just about MM, it is about everything, because you will be involved in a
ह्यूज प्रोसीजर, ये एक या दो लोग ऐसा ऐसा नहीं होता है, ये सारे डिपार्टमेंट्स एक साथ में इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो वट एवर नोट्स यू नीड प्लीज लेट मी नो, बट आप पढ़िए जरूर। पढ़ना ये नहीं करना है मुझे, अगर मैं पढ़ना ही निगलेक्ट कर दूंगा, सीखूंगा ही नहीं ना, तो मैं कर भी नहीं पाऊंगा। तो प्रैक्टिकल में ज्यादा इन्वॉल्व होना ये ठीक है, इट्स ओके, यू कैन डू दैट, बट पहले आप समझ लीजिए कि प्रोसेस होता क्या है। ओके, जाइए आगे से, आगे बढ़िए। Source determination, हम्म source list management, हम्म detailed description about this title, about 20 to 30 words. हम्म Maintaining a list of preferred vendors to streamline the procurement process, हम्म ensuring that orders are placed with the most suitable suppliers in SAP MM. हाँ देखा, तो जैसे देखो कि हमें पता होता है, लाइक फॉर एग्जांपल, एक सिंपल एग्जांपल, हमें पता होता है कि किस होटल में जाके खाना खाना है, वहाँ पे अच्छा मिलता है, प्राइस भी कॉम्पिटिटिव है, क्वालिटी भी अच्छा है। तो ये सो सोर्स लिस्ट मैनेजमेंट, देखो उन्होंने यही तो दिया है कि वेंडर्स टू बी स्ट्रीमलाइन एंड प्रोक्योरमेंट प्रोसेस। सो लाइक जैसे कि टाटा मोटर्स को पता है कि टायर मुझे यहीं से परचेस करना है, क्योंकि क्वालिटी क्वांटिटी वगैरह सारी चीजें आएंगी। हाँ, साइड मिरर्स मुझे यहाँ से करना है, जो कुछ भी है सारी चीजें। तो ये आपके पास पूरा सप्लायर का लिस्ट होना जरूरी है। नेक्स्ट वन ना। Quotation and contract management. हम्म Managing supplier quotations and हम्म contracts to secure the best terms and conditions for procurement. हम्म Leveraging SAP MM to optimize supplier relationships. हम्म So, ये क्या है सर, quotation and contract management? कोटेशन मतलब देखो, सब आप देखो कि फॉर एग्जांपल, अगर ये बहुत बड़े लेवल पे करते हो तो दे नीड टू हैव अ कोटेशन विद देम। और ये हर बार क्या होता है समझो, अगर कई जगह पे मुझे बेस्ट डील मिल रही है, तो आई विल गो विद दैट, अनलेस एंड अनटिल आई हैव अ कोटेशन आई विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड देयर टर्म्स एंड कंडीशंस इन ऑर्डर टू मेंटेन द गुड्स प्रॉपरली। आप कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, कोटेशन का मतलब है कि वो कोट करेंगे एक प्राइस, कि हमारा ये कंडीशन है, इस प्राइस पे आपको ये मटेरियल इस जगह पे और ये प्लांट पे मिल जाएगा। सारी चीजें अगर अप्रूव होती है देन ओनली आई विल बी गिविंग एन ऑर्डर। जैसे कि देखो कि गवर्नमेंट का ही प्रोजेक्ट है, फॉर एग्जांपल उन्हें बनाना है एक सड़क या फिर एक उनको ब्रिज बनाना है, फॉर एग्जांपल दे आर गोइंग टू कंस्ट्रक्ट अ ब्रिज, व्हाट दे विल डू इज दैट दे विल आस्क फॉर कोटेशंस, and in the quotations it is important for the companies to mention which material they will be using, what will be the quality, the quality control department, everything. And apart from that, generally government keeps the डिपॉजिट एज वेल, कि समझो कि एक बोलते हैं ना कि इतने इतने अमाउंट का काम है कि 1200 1300 1500 करोड़, तो मैं ये करूंगा बैंक गारंटी सर। हाँ? हाँ हाँ हाँ, बैंक गारंटी, बैंक रिसिप्ट भी बोलते हैं। तो उसमें ये होता है कि एक उनको डिपॉजिट एक रखना पड़ेगा कि अरे हाँ समझो हम ये काम इस टाइम पे नहीं कर पाए, तो और ये होता है कई बार। हाँ, कई बार घूस वगैरह देके वो कुछ अलग भी बना सकते हैं, बट ये प्रोसीजर है, क्योंकि अगर वो टाइम पे नहीं हुआ या फिर वो क्वालिटी में नहीं हुआ, तो गवर्नमेंट का भी नुकसान है, लोगों का सबसे ज्यादा है, बिकॉज इट इज बीइंग डन थ्रू टैक्स पेयर्स मनी। एंड सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो कंपनी वो कर रही है उनको पैसा मिलेगा ही नहीं। तो ये ना हो, इन ऑर्डर टू अवॉइड दिस रिस्क, बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट, तो हम क्या करेंगे, 1 या 2% उनको बोलेंगे आप डिपॉजिट रखो। अगर आप डिपॉजिट रख पाते हो देन ओनली यू आर इन अ पोजीशन टू गेट द कॉन्ट्रैक्ट, अदरवाइज यू विल ऑटोमेटिकली आउट ऑफ द कंपटीशन। ऐसे अभी देखो Got it. ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाया, उसका कॉन्ट्रैक्ट दिया था एलएनटी को। एलएनटी कंपनी का नाम ही क्या है, मतलब कौन सी फील्ड में वो नहीं है पता है, आप बताइए। सो इट इज अ ह्यूज कंपनी। सो दैट इज इंपॉर्टेंट कि आपका ब्रांड वैल्यू तो होना जरूरी है ही, बट अपार्ट फ्रॉम दैट यू शुड बी इन अ पोजीशन टू, जे सर ने जैसे बोला बैंक गारंटी वगैरह, ये बहुत सारी चीजें उसमें इन्वॉल्व होती है, क्योंकि वो प्रोजेक्ट भी ह्यूज है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज दैट कि पैसा उसमें बहुत लगा होता है, तो रिस्क किसी प्रकार का नहीं लिया जाता, इंश्योरेंस वगैरह आएगा उसमें, सभी चीजें। सिंपल चीज है, हम लोग भी इंश्योरेंस लेते हैं क्यों है, इंश्योरेंस इज जस्ट लाइक बाइंग द रिस्क फॉर अ प्राइस। देखो हम लोग कोई चीज जो अगर मिस हैपनिंग है वो टाल तो नहीं सकते, बट हाँ उसको इंश्योर जरूर कर सकते हैं, दैट इज द रीजन इंश्योरेंस इज देयर। इंश्योरेंस का काम तो वही है। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं एक सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ, लाइक आप में से सभी के खुद के घर मकान होंगे, आई पर्सनली फील लाइक if you go and request for a loan from a bank, what bank will do is that bank will first of all, जैसे हमने इसमें देखा था OB45 के अंदर, कि बैंक पहले तो आपका देखेगा कि आपका ये क्या है, कि इनकम स्टेटस एंड एवरीथिंग, एंड वट एवर प्रॉपर्टी यू आर बाइंग, बैंक विल आस्क यू टू कीप द मॉर्गेज ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी, कि समझो अगर, और बैंक आपको ये भी बोलेगा कि आप इंश्योरेंस ले लीजिए, यू नीड टू टेक अ पर्सनल इंश्योरेंस, मतलब आपका खुद का और वो मकान का भी, बोलते हैं ना वो फायर हो गया, थेफ्ट हो गया। तो ये क्या है बेसिकली, ये होगा ऐसे नहीं, अगर समझो हो गया तो
and in that at that case we need to be insured. Even insurance is for everyone, everything. ओके, इवन क्रॉप का इंश्योरेंस भी होता है और बहुत सारे उसमें बहुत डीप वाला पार्ट है, लेकिन वो क्यों किया जाता है? अगर कुछ ऐसा हो गया कि जो हमारे कंट्रोल के बाहर था तो क्या करेंगे? फॉर दैट रीजन दीज आर द डिटेल्स बीइंग डन. हाँ जी सर, आगे बढ़िए. यस, इन्वेंटरी कंट्रोल। कंट्रोल, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. इन्वेंटरी, इन्वेंटरी इज एन एसेट फॉर अ कंपनी. इन्वेंटरी के अंदर क्या क्या आपका हो सकता है? देखिए, रॉ मटेरियल तो होगा ही, अपार्ट फ्रॉम दैट फिनिश्ड गुड्स, सेमी फिनिश्ड गुड्स और बहुत सारी चीजें. पढ़ लीजिए सर. स्टॉक डिटर्मिनेशन, हम्म. implementing strategies to efficiently determine stock levels, ensuring minimal disruptions to the supply chain, and Hmm. optimal inventory levels within SAP MM. हम्म. Second, inventory Reconciliation. reconciliation. हम्म. Reconciling inventory records with actual stock to ensure accuracy and reliability of inventory data, हम्म. crucial for effective inventory management in SAP MM. अभी देखो, रिकंसिलिएशन सिर्फ एमएम का पार्ट नहीं है. रिकंसिलिएशन प्रोडक्ट प्लानिंग में भी किया जाता है. रिकंसिलिएशन सबसे इंपॉर्टेंट अकाउंट में भी किया जाता है. अकाउंट्स में कोई बताएगा रिकंसिलिएशन? आपने वर्ड सुना है, क्या है मतलब उसका? अर्गावन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड रिकंसिलिएशन? ये वर्ड का मतलब कोई बताएगा? व्हाट इज रिकंसिलिएशन? Since, एनीवन? आपको पता तो होगा, in एटलीस्ट सुना तो होगा. financial is debit is equal to credit. हाँ, बिल्कुल सही है. यस, वंदना मैम, अभिषेक जी, बिल्कुल सही है सर, आपकी बात बिल्कुल. देखो क्या है, हमें एटलीस्ट पता तो हो कि ये होता क्या है. व्हाट इज रिकंसिलिएशन? टू रिकंसाइल मीन्स व्हाट? Sir, it means like it is the act for causing two peoples or like group of peoples that friendly after any disagreement or argument. जैसे देखो, सिंपल एग्जांपल मैं बताता हूँ. कंपनी के अंदर जैसे कि आपका फिनेंशियल स्टेटमेंट्स है. ओके, समझो बैंक बुक है और आपका पासबुक है. मतलब बैंक के अंदर जो एंट्री हो रही है वही सेम एंट्री मेरी पासबुक में भी हो रही है कि नहीं? तो दोनों चीजें मैच होना जरूरी है. जैसे मैंने किसी को चेक इशू किया, ओके, मेरे अकाउंट से तो पैसे कट गए बट उनको मिले ही नहीं, तो बीच में कहाँ है पैसे? वो रिकंसाइल करके मुझे ढूंढना पड़ेगा. सिंपल चीज है सर. आपने एटीएम में कार्ड डाला और कुछ अमाउंट डाली, ओके, अमाउंट दिखा रहा है कि वो डेबिट हो गई, लेकिन मुझे मिली ही नहीं, तो कहीं ना कहीं पे तो वो रिकंसाइल तो होना चाहिए. तो वहां पे कैमराज लगे रहते हैं, सो यू कैन गिव द रिक्वेस्ट कि आप कंप्लेन कर सकते हो, ये सारी चीजें. तो रिकंसाइल करना क्यों जरूरी है? कि एक्चुअल चीजें, मतलब जो है एंड फिजिकली कि सही है कि नहीं है, दैट इज कॉल्ड एज रिकंसिलिएशन. यस, जाइए सर. फिजिकल इन्वेंटरी प्रोसेस. Okay. Physical inventory process. बंद कीजिए, क्या चल रहा है? सर वो कभी कभी हो जाता है error. So हाँ. हाँ, physical inventory process, conducting physical counts of inventory to verify system records, addressing discrepancies, and updating SAP MM records for accurate inventory tracking. यस, तो ये बहुत जरूरी है कि आपको डिस्क्रिपेंसी जो अगर कुछ आता है उसको ना चेक करना है और उसको चेंज करना है एट द सेम टाइम. दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. कम डाउन. यस. Enhancing vendor performance with SAP MM. Vendor performance metrics. Key performance indicators, KPIs. KPIs. Key performance indicators are essential metrics used to measure a vendor's performance in areas such as delivery time, quality, and cost effectiveness. Benchmarking standards. देखो, ये Benchmarking जरूरी है सब. कोई भी नाउ डेज इट इज इम्पोर्टेंट टू बी कॉस्ट इफेक्टिवनेस. ऐसा नहीं कि बहुत सस्ता भी होना चाहिए और बहुत महंगा भी. वी नीड टू हैव इफ कॉस्ट इफेक्टिवनेस, इट इज कॉल्ड, इट्स अ प्रॉपर वर्ड. या गो अहेड. हाँ, बेंचमार्किंग स्टैंडर्ड्स. Yeah, benchmarking standards involves comparing a vendor's performance against industry or internal standards to ensure they meet or exceed expectations. हाँ, देखा, ये बहुत जरूरी है. टू मीट और एक्सीड्स एक्सपेक्टेशंस. सी, कंपनियां ज्यादा पैसा भी देंगी लेकिन आपको ना क्वालिटी देना बहुत जरूरी है. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज इंपॉर्टेंट इन एनी बिजनेस. बाकी वो प्रैक्टिकल वगैरह आप कर लोगे, लेकिन ये जब व्हेनेवर यू विल बी डिफाइनिंग अ बिजनेस ब्लूप्रिंट फॉर अ कंपनी, दीज आर द थिंग्स यू नीड टू कंसीडर. ओके, गो अहेड. पढ़ लीजिए, अभी हो जाए खत्म, जरूरी है. Vendor evaluation programs. It includes regular assessments,
which are routine evaluations conducted to monitor and analyze vendor performance over specific periods. Feedback Second, feedback mechanism. mechanisms. Feedback mechanisms are systems put in place to provide Hmm. vendors with constructive feedback on their Hmm. performance, promoting continuous improvement. अभी देखो सेम चीज ये स्कूल में भी तो होता है, रेगुलर असेसमेंट, मतलब आपका 1 महीने में टेस्ट होगा, हफ्ते में होगा, 3 महीने में होगा, सेम चीज। और यही फिनेंशियल इसमें भी होता है। फॉर एग्जांपल, यू नीड टू प्रिपेयर योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, क्वार्टर एंड ईयरली। जैसे आपको ये पता होगा कि जीएसटी का जो वैल्यू ये होता है, या फिर इवन इनकम टैक्स का भी ये चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वगैरह करते हैं ना, तो गवर्नमेंट का देखो कि पोर्टल है गवर्नमेंट का है, लेकिन क्या होता है उसमें कि एक बार में सब लोग भरेंगे ऐसा नहीं है। तो व्हाट दे डू इज दैट, मंथली भी रखते हैं वो, क्वार्टरली भी रखते हैं, और क्वार्टरली में भी उन्होंने ये किए हुए हैं कि हाँ इतने स्टेट्स के लिए आप भी भरो, ये करो। किसी ने भरा हुआ है जीएसटी का ये वैल्यूएशन वगैरह करके, जीएसटी जो बोलते हैं ना हम लोग, टैक्स का ये भरते हैं, रिटर्न्स वगैरह, एनीबडी हैज डन? कर लीजिए, आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस आएगा। ओके, दैट इज इंपॉर्टेंट। हाँ जी सर, फीडबैक मैकेनिज्म पढ़ा। नेक्स्ट वन। हाँ सर, वो पढ़ लिया। हम्म Improvement plans. हम्म Improvement plans are structured strategies developed collaboratively with हम्म हम्म vendors to हम्म address performance gaps and हम्म enhance overall efficiency. ठीक है, परफॉर्मेंस गैप्स एंड ओवरऑल एफिशिएंसी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये वर्डिंग बहुत जरूरी है, अगर ये आपको यूज करना है इन एन इंटरव्यू, दे विल कंसीडर यू। बिकॉज सी, मैं अभी वही फिर से एक बार दोहराऊंगा कि कंपनी इज नॉट एक्सपेक्टिंग यू टू डू द डेटा एंट्री काइंड ऑफ वर्क, दे वांट यू टू perform in such a way that you should be in a position to get the job done from others in an in a formally organized manner. So you need to have a very good command on in language. Apart from that, you should involved in each and every process, you should know thoroughly. ओके, आपको पता ही होना चाहिए कि कौन से डिपार्टमेंट में क्या क्या चीजें चल रही है। तो यही तो काम है ना एज अ सीईओ, या फिर ये बोलते हैं ना एकदम ऊपर के लेवल पे जो लोग बैठे हैं उनको पता होना चाहिए। तो देखो, इंप्रूवमेंट प्लान्स ये, और ये आप ही को करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू improve द परफॉर्मेंस, इन ऑर्डर टू कीप डिलीवरिंग द बेस्ट प्रोडक्ट्स एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ अ मार्केट। दिस इज समथिंग वी नीड टू डू। अगर हम करेंगे तो अपना एफिशिएंसी भी बढ़ेगा एंड इम्प्रूव, क्योंकि इट इज अ प्रोसेस, इट गोज ऑन इम्प्रूविंग। गो अहेड, नेक्स्ट वन सर। सर एक सेकंड, ये फीडबैक मैकेनिज्म नहीं समझा मुझे। फीडबैक मैकेनिज्म क्या है, देखो लिखा क्या है वहां पे, फीडबैक मैकेनिज्म आर सिस्टम पुट इन प्लेस टू प्रोवाइड वेंडर्स विथ कंटिन्यूअस फीडबैक ऑन देयर परफॉर्मेंस, प्रमोटिंग कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। कि कई बार क्या होता है कि हाँ वेंडर अच्छा है, वो गुड्स अच्छा बेचता है, लेकिन कई बार ये होता है कि कम आ गया माल, या फिर गुड्स का क्वालिटी अच्छा नहीं है, ये सारी चीजें भी हो सकती है। ये मोबाइल केस में भी होता है। देखिए, एक किसी का नाम है तो वो मोबाइल अच्छा है, लेकिन बाकी के अच्छे नहीं, ऐसा नहीं होता। ओके, एक्चुअली इफ यू कंसीडर, आप देखिए कि सैमसंग सबसे बड़ा कंपनी है वर्ल्ड का, वर्ल्ड नंबर 1 कंपनी सैमसंग, बट स्टिल आईफोन्स आर प्रेफर्ड, उसकी प्राइस ज्यादा है फिर भी। सैमसंग में ये अगर देखोगे आप उसके फीचर्स आर मेनी फीचर्स, बट स्टिल आईफोन इज कंसिडर्ड एज द बेस्ट ब्रांड। और आप देखोगे तो अगर सरप्राइजिंग एक और चीज है कि आईफोन के जो डिस्प्ले है वो भी सैमसंग ही बना के देता है फिर भी उनके फोन का प्राइस कम होने के बाद भी वो नहीं बिकता, लेकिन ये बिक जाता है। तो ये इसमें मेनली सर फीडबैक मैकेनिज्म में है ना, हमें अपने वेंडर्स को हमेशा फीडबैक देना जरूरी है कि सर ये अच्छा था, ये अच्छा नहीं था, इसमें थोड़ा आप इंप्रूव कर लीजिए। ठीक, उन्होंने दिया भी है ना यहाँ पे कि यस सर। you need to put in place and provide vendors with a continuous feedback. You need to give them the acknowledgement and the feedback as well on their performance, promoting continuous improvement. सर ये अच्छा नहीं था तो आप इसको थोड़ा सा अच्छा बढ़ाइए, अच्छा कीजिए, like that you can tell them so that it will be easy for them to improve their performance on a day-to-day basis. और ये improvement plan तो आप कर ही रहे हो, no problem, go ahead. यस सर। हम्म Contract management. हम्म Contract life cycle. हाँ The contract life cycle encompasses all stages from creation and execution to हम्म renewal or termination, हम्म ensuring contracts are effectively managed. हाँ, अभी देखिए, एक्चुअली देर आर इट कम्स अंडर OB41, देर आर 6 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट कीज। ओके, क्या क्या होता है वो देखिए, ADKMSV, वी मतलब कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, A फॉर एसेट, D फॉर डेटर्स और कस्टमर्स मतलब अकाउंट रिसीवेबल, K फॉर वेंडर्स और क्रेडिटर्स अकाउंट्स पेबल जो कि डायरेक्टली MM के साथ इन्वॉल्व हो रहे हैं। ओके, ADKM, S फॉर जनरल लेजर अकाउंट, V फॉर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। अच्छा सर, आप सिस्टम में जाइए, मैं आपको बताता हूँ कहाँ पे दिखता है ये।
OB52 करके एक ये है टी कोड, उसमें डाल दीजिए /n OB52 52 एंटर। यहाँ पे ना 1710 करके कोड डालिए, इट कम्स अंडर अकाउंट्स, लेकिन आपके लिए बहुत रिलेवेंट है, एंटर कीजिए। हाँ, ये देखो, ये दिख रहा है, ए फॉर एसेट, और अभी जो ए लिखा है उस पर आप क्लिक कीजिए सर, नीचे 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 नीचे, हाँ नहीं वो, हाँ वो जो दिख रहा है ना अंदर जाने के लिए जो है, हाँ क्लिक देयर। ये देखो, ये ए फॉर एसेट, डी फॉर कस्टमर मतलब अकाउंट रिसीवेबल जो कि एसडी के साथ इंटीग्रेट होगा, वी फॉर वेंडर, वेंडर्स विल गेट इंटीग्रेटेड विथ मटेरियल मैनेजमेंट, ओके। एम फॉर मटेरियल, एस फॉर जनरल लेजर अकाउंट, जनरल लेजर में क्या आता है सर, लाइबिलिटी, एसेट, इनकम, एक्सपेंडिचर, एंड वी फॉर ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है बता सकते हैं आप, बताइए सर, व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट? So contract basically it means that हाँ we are dealing with another party for हाँ, such circumstances that certain period of a time, like 6 months, yeah. 1 year, 3 year, 5 years, okay। तो कॉन्ट्रैक्ट एक बार हो गया, आप ब्रेक नहीं कर सकते, इसलिए आपको जितना पीरियड रखना है आप रख दीजिए, ओके। सो देखो, ये ADKMS, दीज आर, एस फॉर जनरल लेजर अकाउंट एंड वी फॉर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, दीज आर कॉल्ड एज अकाउंट टाइप्स, और अकाउंट की यू कैन कॉल, जो कि सभी के लिए आता है, ये सिर्फ ऐसा नहीं कि फिर अकाउंट्स का ही पार्ट है या फिर MM का पार्ट है, इट कम्स अंडर ऑलमोस्ट एवरी मॉड्यूल, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट वन, ओके ठीक है, आगे पढ़िए सर, नेक्स्ट वन वी विल गो Yes. अहेड। सर GL अकाउंट्स में ये सब आता है ना, वो फिजिकल ईयर वेरिएंट और वो हाँ हाँ means हाँ, वो सब। GL अकाउंट में देखो क्या आता है, मैं आपको बताता हूँ, मेनली GL इज under GL account we are going to define chart of account. Chart of account is a list of general ledger account with the help of which we can prepare all the financial statements. And उसके 3 टाइप्स है, ऑपरेटिंग चार्ट ऑफ अकाउंट, कंट्री स्पेसिफिक चार्ट ऑफ अकाउंट एंड ग्रुप चार्ट ऑफ अकाउंट। तो ये मुझे ना देखने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, इतना मैं हर रोज ये करता ही रहता हूँ, सो आई नो दैट। तो ये आप इतना आप पूरा जान लीजिए, एक बार ये आपको प्रोसेस पता चल गया ना, आप इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट भी बन सकते हो, ऐसा नहीं कि किसी कंपनी में जाके काम ही करना पड़ेगा आपको। आप एक साथ में 4 5 6 प्रोजेक्ट, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं, देखिए एक साथ में उनके 5 6 कंपनी के ऑडिट चलते रहते हैं, हाँ उनके नीचे वाले लोग भी अच्छे से काम करेंगे, उनको सिर्फ सिग्नेचर करना है, बिकॉज सिग्नेचर का वैल्यू है, दैट इज द रीजन। So GL accounts is mainly a chart of accounts. It has got 3 different types: operating chart of account, group chart of account, and country specific chart of account. Operating का मतलब है कि जो हर रोज होने वाले चार्ट ऑफ अकाउंट्स है, एवरी डे टू डे एक्सपेंसेस, इनकम वगैरह सारी चीजें। ग्रुप चार्ट ऑफ अकाउंट्स आर फॉर द एंटायर ग्रुप ऑफ कंपनी, जैसे कि आपका शाहिद ग्रुप ऑफ कंपनी। एंड कंट्री स्पेसिफिक आर लाइक एज पर द कंट्री रिक्वायरमेंट, फॉर एग्जाम्पल इंडिया, इन इंडिया वी फॉलो GST वाला पार्ट एंड अदर डिटेल्स, सो इंडिया का इंडियन स्टैंडर्ड से, in US there is a gap, generally accepted accounting principle, in this one across the world बहुत सारी कंट्रीज में IFRS यूज करते हैं। IFRS क्या है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। सो एज पर द स्टैंडर्ड्स वी नीड टू डिफाइन द रिपोर्ट्स, वो कुछ अलग चीज नहीं है, डेबिट डेबिट ही होगा, क्रेडिट क्रेडिट ही होगा, बट वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज दैट वी नीड टू अबाइड बाय द लॉ ऑफ द लैंड, हम लोग अपने मन से ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस सर। आगे सर और ये इसका एक एग्जांपल मैं दे सकता हूँ, ये अगर टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज है तो वो ग्रुप चार्ट ऑफ अकाउंट यूज करेगा, राइट? एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली। और ओके ये सर। देखो, ऑपरेटिंग चार्ट ऑफ अकाउंट इज इंपॉर्टेंट, बट द अदर वन लाइक ग्रुप चार्ट ऑफ अकाउंट एंड कंट्री स्पेसिफिक चार्ट ऑफ अकाउंट इज ऑप्शनल, लेकिन वो करना पड़ता है, क्योंकि देखो कि लाइक एवरी क्वार्टर ऑल दीज कंपनीज डू प्रोड्यूस देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, क्योंकि देखो उनके अभी IPOs वगैरह आते हैं, सबको पता है व्हाट इज IPO, ये पब्लिक ऑफरिंग वगैरह क्या होता है, तो आप नॉलेज बढ़ाना जरूरी है आपको, इससे आपको काम में तो आएगा ही, बट गोइंग फॉरवर्ड वेन एवर यू विल वर्क इन अ कंपनी इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। आगे जाइए, चलो, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग बोलते हैं उसको, IPOs वगैरह, तो ये जान लीजिए पूरा, आगे जाइए। यस। Compliance monitoring. It involves regularly checking that vendors adhere to the terms and conditions outlined in their contracts to mitigate risks. यस। हाँ। Future trends in SAP MM and vendor management. Digital transformation. Automation and AI. Automation and AI are streamlining procurement and vendor management processes, enhancing efficiency, reducing human errors, and allowing for real-time data analysis and decision making. Blockchain for supply chain. Blockchain technology provides transparency and security in supply chains, ensuring that every transaction is verified and immutable, thereby improving trust and tracking of goods.
Understood? Trust and tracking of goods. Yes. Yes, means these are the future trends where SAP will be अभी अभी utilized. will भी नहीं, अभी ऑलरेडी है इसमें, वो Okay. ऑलरेडी कर चुके हैं बहुत सारी चीजें. दैट इज द रीजन एसएपी इज पॉपुलर बिकॉज इट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स. हाँ, गो हेड नाउ. और देखो अभी खत्म हो गया लास्ट टाइम. Sustainability considerations, कंसिडरेशन. यस. green procurement practices. It involves sourcing products and services that have a reduced environmental impact, incorporating sustainability into every stage of the supply chain. देखो इसीलिए तो देखो आप देखो कि ये ग्रीन प्रोजेक्ट में इंडिया हैज ऑलरेडी अडॉप्टेड कार्बन इमिशन. सो इंडियन उन्होंने देखो 2030 तक क्या रखा हुआ है लक्ष्य की, हम लोग कार्बन का जो एमिशन है वो 30 to 40% तक कम कर देंगे. और धीरे 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 आगे जा आके 2070 मतलब 2070 तक पूरी तरह से पेट्रोल डीजल की डिपेंडेंसी अपनी बंद कर देंगे पूरी तरह से. अब उसमें टाइम है, बट दीज आर द प्लान्स गोइंग फॉरवर्ड. उससे क्या होगा, एनवायरनमेंट को हानि नहीं पहुंचेगी, हम अच्छी खुली हवा में सांस ले पाएंगे, क्योंकि ये होगा तो भी तो आगे जाके प्रोग्रेस होगा ना. प्रोग्रेस एट व्हाट कॉस्ट, दैट इज ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड, ये सारी चीजें आपको देखना पड़ेगा. कि जैसे देखिए इलेक्ट्रिकल व्हीकल का वगैरह ये आगे जा रहा है, हाँ वो अभी डेवलपमेंट स्टेज में है, बहुत सारी आगे चीजें जाएंगी, वो ठीक है. बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट इट्स अ रोड मैप गोइंग अहेड. ओके, इन अ बजट एज वेल इट इज बीइंग मेंटेन्ड एंड डिफाइंड. बजट में देखो ये सारी चीजों के ऊपर ना प्रॉपर एक ये किया रहता है. इवन यू वुड हैव हर्ड अबाउट इट कि ये जो सोलर रूफ वगैरह उसके ऊपर बनाते देखिए कि बिजली बनाते हैं उससे. ओके, सो दैट आपका जो बिजली का खर्चा है वो पूरा जीरो आ जाएगा. इवन यू कैन प्रोड्यूस इट एंड गिव इट टू द इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट एज वेल. these plans are also there. Most of the time it is basically helpful for इस one. और आप देखोगे यहाँ पे बहुत सारी सिटीज के अंदर वो पूरे प्लांट बनाए गए हैं. इवन इनका अदानी का एक बहुत बड़ा प्लांट है सोलर का. तो दैट इज हेल्पफुल फॉर द ह्यूमन कॉज गोइंग फॉरवर्ड. हाँ, ये आगे पढ़िए सर. एनवायरमेंट इम्पैक्ट एंड ट्रैकिंग. Environmental impact tracking. Tracking the environmental impact of procurement activities helps organizations measure their carbon footprint, waste reduction, and sustainable practices, aligning operations with environmental goals. देखा, अलाइनिंग ऑपरेशंस विद हाँ एनवायरमेंट गोल्स. यस, नेक्स्ट वन. Globalization impact. It involves emerging market and cross-border collaboration. In emerging markets offer new opportunities and challenges requiring businesses to adapt their procurement strategies to local conditions, regulations, and cultural nuances. Cultural nuances. Nuances are the highest level. Cultural nuances. Cross-border collaboration. Cross-border collaboration involves managing vendors and supply chain across different countries, focusing on communication, compliance, and leveraging global expertise to achieve business goals. So देखो like it's a very good example. In terms of semiconductor production, India was earlier depending on the other countries like Taiwan, Malaysia. You can check, get that example. But now India has already started its own operations in a different cities and different companies. टाटा वगैरह बहुत सारी कंपनीज खुद से स्टार्ट हो गई है. यू माइट बी अवेयर अबाउट, एक छोटा सा एक चिप होता है वो देखिए, और हर एक इंडस्ट्री में यूज किया जाता है वो, इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री. और इससे क्या होगा, ऑटोमेशन और बहुत ज्यादा बढ़ेगा. एंड डिपेंडेंसी ऑन जो पारंपरिक ऊर्जा बोलते हैं ना, उसके ऊपर जो डिपेंडेंसी होगा वो कम होगा. एंड गोइंग फॉरवर्ड दिस इज द फ्यूचर इट इज बीइंग कॉल्ड. इवन ये मोस्ट ऑफ द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में ये सबसे ज्यादा यूज होता है उसका. ओके, कोलैबोरेशन है ना, ये सारी चीजें आप जान लीजिए, पहले पढ़ लीजिए ताकि आपको ना समझ में आएगा कि अरे हाँ ये चीजें हो सकती है इसमें. ओके. यस. Yes, sir. ओके, लेट्स टेक अ ब्रेक हियर. उसके बाद थोड़ा सा देखेंगे एंड देन विल स्टॉप हियर फॉर टुडे. बाकी का तो उसमें प्रैक्टिकली दिया ही हुआ है कैसे किस तरह से करते हैं. एवरीवन प्लीज गो थ्रू दिस. मैंने इनकम टैक्स के नोट भेजे आपको, वो भी पढ़ लीजिए. दैट इज वेरी हेल्पफुल फॉर यू. रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म क्या होता है देखिए. जीएसटी का तो हम देख ही लेंगे गोइंग फॉरवर्ड. इसके बाद अपना वही टॉपिक है. In India, we have CGST, SGST, IGST, UTGST, इनपुट टैक्स, आउटपुट टैक्स एंड रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म वहां पे भी कैसे यूज होता है वो भी हम देखेंगे. ओके, चलो लेट्स टेक अ ब्रेक. Yes, sir.
Okay, welcome back. Let us start once again. Go ahead now. Yeah. Shahid, are you starting? Yes, sir. Start. शायद जी आप start कीजिए चलो. Let's go ahead. Yes, sir. Okay. Hmm. You understood the entire PPT. That is important for you. Please do remember that. Yes. Yes, And sir. Almost it was like understandable, familiar notes. So I understood most of the part. So we were here in master data, Split active valuation. split valuation. Yeah. Hmm. So here we were in After that, we reached valuation account assignment, then split valuation, and we also already read this split valuation. Now this activate split valuation we are here, sir. Okay. So it is also, I have read all this at that time. I will just recall it. In this step, you configure whether split valuation is allowed at your company. If you generally allow split valuation, it does not mean that you must evaluate each material on this basis. You decide whether to do so or not for a particular material when creating the material master record. Correct. A lot of effort is required to change this setting once it has been made. In the standard SAP system, split valuation is active. Set split valuation. In this step, you maintain the table TCURM. This table activates or deactivates key functions in the client. So first one is like it defines the valuation level, plant or company code, activates the late material block, activates split valuation. So these are the three. Uh, since the automatic transport of an indicator could activate or deactivate other functions, you cannot use the automatic transport function here. Maintain the customizing function manually in the target system. For the first customizing transport to a target system that is not yet productive, you can transport the table manually. To do this, you must include the entry R3TR TABU TCURM in the transport request. सर यहाँ पे ऐसा क्यों बोला जा रहा है कि lot of efforts is required to change this setting once it has been made? Because the changes are required to be done later part, but ये होता है कि पूरा एकदम शुरुआत से आपको सारे चेंजेस करने पड़ेंगे. दैट इज द रीजन. जैसे कि देखिए अभी समझो जो बजट के अंदर देखो फॉर एग्जांपल कुछ टैक्सेशन दिया गया है. ओके, उसको अगर पूरा ही चेंज करना है आपको तो एक तो अमेंडमेंट आप कर सकते हो, मतलब सुधारना करना उसमें. और ये एकदम शुरुआत से आपको पूरा करना पड़ेगा क्योंकि एक फाइनेंशियल ईयर के लिए होता है ये एज पर रिक्वायरमेंट. हाँ, एकदम से बीच में ही आपको लगेगा कि ऐसा नहीं हो सकता कि आपने फट से चेंज कर दिया. ऐसा नहीं होगा क्योंकि प्रोडक्शन हो चुका है, उसका बहुत सारी चीजें जा चुकी है आगे. इसकी वजह से दैट इज द रीजन इट इज कॉल्ड एज लॉट ऑफ एफर्ट. एफर्ट मतलब फिजिकल एफर्ट नहीं, आपको सिस्टम में भी चेंज करने पड़ेंगे ये. ओके ओके. Sir, what is table and what role does it make in SAP? What is basically a table? Table is Because- required in order to prepare any entry. You can think like for example in terms of taxation as well we need a table. Table is basically different types of taxes
And for every entry, we need to have a particular table. For example, I'll give you an example of material management. Under that, we can have a table for this one, raw material, finished goods, semi-finished goods. Even when we are defining taxes, there are different types of taxes. For example, under the GST part, we have 0%, 5%, 12%, 18%, 28%. There are certain materials which has got 0% tax. Which are those? Generally, the material related to farm. Okay, for example, if you purchase loose material, that will have a 0% tax. And most of the luxurious goods, 28% tax will be applicable for them. Example, like liquors, then this one, tobacco brands, even perfumes and everything. So it comes under that particular. So this is the entire table we need to maintain. And it's a physical activity we need to define, and in system as well, we need to maintain that. So table is basically where data gets stored. Yes, exactly, exactly. Yes. Okay, Jayendra, yes. Yes, sir. So this one was remaining split valuation. Mm. So definition is here. So an Mm. option that lets you manage stocks of a single material in a plant in different stock accounts in terms of value. Mm. You can evaluate different stocks of the same material separately. So example includes externally procured and internally manufactured stocks of the same material within a plant are Mm. managed in different stock accounts with different valuation approaches and different price control. So सर इसका मतलब क्या है डेफिनेशन का मतलब स्प्लिट वैल्यूएशन में इनवॉइस वेरिफिकेशन An option that lets you manage stocks of a single material in a plant in a different stock accounts in the terms of value. अभी देखो हमने देखा ना तीन प्रकार की वैल्यू और different types of valuation we can maintain. You can evaluate different stocks of the same material separately. जैसे ABC indicator होता है ABC. Under A items you are going to maintain. वो इसका एक part है. उसके जैसे और भी हो सकते हैं. Under A item you are going to keep 20% material with 80% value. Under B, you have 50% material with the same value. And under C, material is 80%, but the value will be 20% only. मतलब exactly opposite to A. Like that. कि अलग अलग मटेरियल का वैल्यूएशन अलग अलग और उसका स्टोरेज भी हमने अलग अलग जगह पे किया है. वी हैव ऑलरेडी मेंटेन एट अ डिफरेंट प्लेस. इट इज कॉल्ड एज मटेरियल वैल्यूएशन. एग्जांपल देखिए क्या लिखा है, देखो एक्सटर्नली एक्सटर्नली प्रोक्योर्ड एंड इंटरनली. एक्सटर्नली अभी देखिए सिंपल देखिए, मैं अगर कहीं बाहर से कुछ चीज लेके आता हूँ और मैं घर के अंदर ही बनाता हूँ, दोनों का प्राइस में डिफरेंस होगा. Externally procured and internally manufactured stocks of the same material with a plant are managed in a different stock accounts with a different valuation approaches and different price control. Okay, so this is we need to understand and define it practically as well, so that it will be easy for us to maintain and define the details like that. yes sir. Hmm. So till here we have completed Hmm. split valuation. After that this also we saw late material and Hmm. guys if you have any doubt in this please ask. After एक this एक we बार will पूरा start पढ़ next. लीजिए, ये बहुत जरूरी Yeah. है आपके लिए. प्लीज अंडरस्टैंड. प्रैक्टिकल तो आप कर लोगे, बट अंडरस्टैंडिंग दिस गोइंग फॉरवर्ड, ये टॉपिक जैसे हो जाएगा मैं आपको ये भी भेज दूंगा, बिजनेस ब्लूप्रिंट. दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू. इसके अलावा मैं आपको बाकी के, अच्छा वेट वेट, मैं आपको ना, यू कैन स्टॉप शेयरिंग द स्क्रीन सर, मैं आपको ना Yes sir. ये नोट्स भेज देता हूँ. एक्सटेंडेड वेयरहाउस मैनेजमेंट. गो थ्रू दिस. आपको ना कानबान वगैरह बहुत सारी टेक्निक्स है, जिससे क्या होता है कि आपका एक प्रॉपर कंट्रोल रहता है मटेरियल के ऊपर. ये ले लीजिए, इट इज फॉर extended warehouse management. Get it downloaded. सर लिंक आया नहीं है.
Yes, get it downloaded. This is also very important because going forward, it will definitely get integrated with the extended warehouse management. One by one, we are going to see. I will make sure that you will understand extended warehouse management, plant maintenance, product planning. बहुत सारे और भी techniques है, which will be helpful for us to understand and define the details practically as well. सर वो जो स्प्लिट हाँ। वैल्यूएशन में हमने देखे ना, टेबल क्रिएट करना होता है हाँ हाँ और डेटा एंट्रीज वगैरह, तो हाँ। वो हम एमएम वाले करते हैं या फिको वाले करते हैं? नहीं, वो एमएम का ही काम है, एमएम को ही करना पड़ता राइट, है। बिकॉज इट वाज अंडर मटेरियल्स मैनेजमेंट। मटेरियल सप्लाई, यस यस यस। या हाँ, सबको साथ में काम करना है, बट कुछ एक्सक्लूसिव चीजें हैं जो एमएम कंसल्टेंट को ही करनी पड़ेंगी। मेनली प्रैक्टिकल ओके, पार्ट इसमें ये स्टोर कीपर वगैरह वो लोग करते हैं, बट हाँ, आपको ना उनको प्रॉपर एक तरीका बना के देना पड़ेगा गोइंग फॉरवर्ड। मैं आपको ये भी भेज दूंगा कि व्हाट एग्जैक्टली इज द जॉब ऑफ कंसल्टेंट इन अ कंपनी इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट्स दैट विल आल्सो बी कंसिडर्ड बाय अस, वो हम देख लेंगे। यस सर। ठीक है, चलो, सो विल स्टॉप हियर फॉर टुडे। ये पूरा पढ़ लीजिए, ये आपके लिए जरूरी है। और देखो, जितना हो सके ना उतना नोट्स वगैरह खुद के निकालिए, क्योंकि ना मुझे ये देखो, किसी इट इज एप्लीकेबल फॉर एवरीवन दैट व्हाट आई अंडरस्टैंड। कई लोगों को ना ऐसे लिख के समझ में आता है कि आई डू रिमेम्बर व्हाइल राइटिंग, a few of you will understand by preparing the PPT presentation. So everyone's method of understanding might be different, but it is important for you to have your own notes so that it will be helpful for your interview, group discussion, and even for your examination as well. ओके, आप खुद के अगर नोट्स बनाओगे, पीपीटी तो बहुत ही बढ़िया है, आप लिख लीजिए, बट मेक श्योर यू हैव समथिंग विथ यू सो दैट इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू टू मेंटेन इन अ प्रैक्टिकल मैनर एज वेल। ठीक है, चलो, बाय एवरीवन, हैव अ गुड डे, बाय। ओके, बाय, थैंक विल यू मीट सर। अगेन, Thank you, थैंक्स अ लॉट, sir. हैव अ ग्रेट डे। हाँ जी, हाँ Thank जी। you. Have a great. आगे जाके बहुत सारी और भी नोट्स भेज दूंगा, मेक श्योर यू गेट इट डाउनलोडेड। आदित्य, डिड यू डाउनलोडेड द नोट्स? Yes, sir. I've downloaded all the notes. वेरी गुड, वेरी गुड। डाउनलोड कर आने, अलग से फोल्डर बनाइए इसका। वंदना मैम, Yes, व्हाट sir. अबाउट यू, डिड यू डाउनलोड इट? Yes, sir. अर्गावन, डिड यू डाउनलोड इट? Yes, sir. Yes, sir, मैंने downloaded. आपको मैम, आर्गन मैम, आपको बोला था पहले शेयर करने के लिए, आपने कुछ जवाब ही नहीं दिया, आप चुप ही बैठे ऐसा क्यों? सर वो सिस्टम हैंग हो गया था। तो ये तो बता सकते ना कि सिस्टम हैंग हो गया, मतलब मैं अपने मन में ही सोचूं कि सिस्टम हैंग हो गया होगा करके, है एटलीस्ट बता तो सकते हो। फिर उन्होंने दिखाया सर ने, बट एटलीस्ट आप बता तो नहीं दीजिए। कुछ नहीं बताना है, इसका मतलब क्या होता है मैम, बताओ। अमोल सर, कर लिया डाउनलोड सर? आई होप यू हैव डाउनलोडेड। ओके, चलो, बाय, हैव अ ग्रेट वीकेंड, बाय। Okay, sir. Thank you. बाय बाय सर।